Hello everyone, welcome to Rantra's Approach to Lavasana. So we were doing 2019 ka paper and we have done two parts and this is part 3. So welcome to Prelims Aptitude Mastery where we develop the aptitude to solve the prelims paper which UPSC meets and those people who are stuck on margin, and these videos will help those people to clear the prelims just like they helped me and my friends, and also the other people who write mains every year and those who go through the interview and find their name in the final list. So today we are going to finish 2019. Just one thing I want to tell, these are the preps, basic preps which UPSC uses. We have discussed in the previous video, so and we will be doing it today also. Just one thing I want to highlight which I got to know through a mail, that still a few people are confused. देखो, ये जो लॉजिक्स हैं या एप्टीट्यूड है या एलिमिनेशन की टेक्निक्स हैं, ठीक है भाई, इनका 100% एप्लीकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा. इफ़ दे हैव 100% एप्लीकेशन तो यूपीएससी पेपर क्यों ही बना रहा है? तो फिर तो इन लॉजिक के बेसिस पे 200 में से 200 नंबर आ जाएंगे. 200 में से 200 नंबर नहीं चाहिए ना हमें. हमें क्या चाहिए? 50% चाहिए. 100 नंबर भी हमारे आते हैं, सो वी आर क्लियर इन द कट ऑफ. 50% चाहिए भाई नेट में. वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग लाइक कैट या नीट. भाई वहाँ कट ऑफ हाई जाता है, वहाँ मार्क्स चाहिए होते हैं लाइक जो उनका लाइक टोटल होता है उसके नियर बाय चाहिए होता है फॉर गेटिंग द टॉप कॉलेजेस. बट प्रीलिम्स इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम एंड उसकी कट ऑफ है 50% है, इसीलिए नहीं इसको टफेस्ट एग्जाम बोलते हैं कंट्री का. देर इज अ रीजन. सो वी डोंट हैव टू रन फॉर 100%, वी जस्ट नीड 50%. एंड आई टोल्ड यू द लॉजिक. मैंने आपको इसमें लॉजिक भी बता रखा है कि या if we are attempting, we get 100 questions, and if we attempt 90 questions and we skip 10 questions, out of those 90, 30 to 35 questions or 40 questions will be such which you will be knowing because of the static knowledge. For example, Lakshmikant, spectrum, eco का कोई आपने सोर्स पढ़ा है उसके थ्रू, ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी से पढ़ा है. सो देयर विल बी 35 to 40 questions which you can directly solve from the static knowledge. And if we assume they are only 35 which you are able to solve, and we assume you did 5 silly mistakes and you did 30 net correct out of those questions, so we are still left with 55 questions. So 55 30 is equals to 90, and out of those 55 questions we need 30 questions, just 30 questions. So it becomes 60, and 60 into 2 120. We got 30 incorrect, 5 यहाँ से 25 यहाँ से. एंड विद दिस 30 क्वेश्चन इंकरेक्ट अगर हो जाते हैं हमारे, सो वी गेट 20 नेगेटिव. सो टोटल जो टोटल है वो तो हमारा फिर भी 100 जा रहा है ना. एंड कट ऑफ कितनी थी इस बार? 92.66. पिछले 4-5 साल से कट ऑफ 100 से नीचे है. एंड इफ यू आर सिक्योरिंग दीज मच मार्क्स, so you are in the safe zone. You don't have to worry much, you just have to bother about how to secure these marks. And here I am telling the accuracy rate of less than 60%. and trust me when I say, जो ये लॉजिक्स हैं, जो एप्टीट्यूड है, इनका जो एप्लीकेशन एस्पेक्ट है, जो एप्लीकेशन जो रिजल्ट है, जो इससे आउटपुट मिलता है, वो 70% का है इफ यू अप्लाई देम विद कॉन्फिडेंस. सो वट आई हैव टू से इज की इफ यू आर अप्लाइंग देम इन 50 क्वेश्चंस, ठीक है, ये लॉजिक्स आप 50 क्वेश्चन में लगाते हो, तो बाय लाइक द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम वी जस्ट नीड 30 क्वेश्चंस. ठीक है, हमें 30 क्वेश्चन चाहिए. सो द रेशो इज 60%. बट इफ यू विल अप्लाई देम लाइक 100% विद कॉन्फिडेंस, विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिस, आफ्टर कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिस, देन यू विल गेट 35 क्वेश्चंस. तो भाई 70% का है, एंड स्टिल आई एम गिविंग यू 10% का विंडो. So even if you get 60% accuracy out of those 55 questions, we just need 30. Even this is less than 60%. This is less than 60%, right? So even if you get 60% questions right, you are done. You are done. बस एक चीज करनी है भाई, यहाँ 35 क्वेश्चन में गलती नहीं करनी. And when I will be discussing my 2023 का पेपर, 2024 का पेपर and 2025 का पेपर, I will tell you that how I did the overthinking. And in 35 में भी मैंने गलती की थी. यहाँ सिली मिस्टेक्स होती हैं. इट इज जस्ट यू हैव टू अवॉइड दो सिली मिस्टेक्स, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन आपका जीरो है. क्यों जीरो है? बिकॉज अगर 50,000 या 60,000 सीरियस बच्चे हैं, देन दोज 50 to 60 सीरियस जो 1000 सीरियस बच्चे हैं, वो इसमें 99% जो बच्चे होंगे वो भाई इसमें एक्यूरेसी लेके आएंगे, वो 35 क्वेश्चन ठीक करेंगे. सो वी हैव टू डू दिस. हमारा कॉम्पिटिशन है इन 55 क्वेश्चन में, इन 55 क्वेश्चन में. वी हैव टू कम्पीट इन दीज 55 क्वेश्चन. सो दिस इज द थिंग, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भाई आर्ट ऑफ लेटिंग गो. वी डोंट नीड टू अटेम्प्ट एवरीथिंग. वी डोंट नीड टू अटेम्प्ट एवरीथिंग. वी नीड 50% मार्क्स. वही 50% चाहिए, 100% नहीं चाहिए. एंड दिस अप्लाइज फॉर सी सेट. सी सेट का मैंने वीडियो डाला है जिसमें मैंने ब्रेक डाउन किया है दैट विद कम्फर्ट, विद इनफ प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट 2 months, हाउ यू कैन अटेम्प्ट द पेपर. And with that ideal strategy, I'm focusing on the word ideal. This is not the strategy but a strategy which can help you to clear the CSET
विद डिसेंट मार्जिन। भाई मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, और 2 महीने हैं। सो यू कैन वॉच दिस वीडियो, एंड इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। सो यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड जस्ट डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 61. वी हैड डन टिल 60th. Yes, question number 61. The service area approach implemented under the purview of IRDP, Integrated Rural Development Program, Lead Bank Scheme, MGNREGA, National Skill Development Mission. देखो, ये क्वेश्चन तो वैसे है भाई नॉलेज वाला पार्ट है, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भाई ये है स्किपेबल क्वेश्चन. बट in the previous video I have told you multiple questions which are skippable, but ultimately we can skip 10 to 15 questions, not much. So we have to take risk, and we will take risk in certain questions based on the PYQs के basis पे we will take risk in certain question. And if even if we get take risk in 10 questions, and in those 10 questions even if we get 6 questions correct, we are in the safe zone. So based on the logics we will take some certain risk, and in this question the risk will be of odd one out. देखो ऑप्शन नंबर ए देखो, सी देखो, डी देखो. ए लंबा है, 2 लाइन में आ रहा है, कोई रैंडम चीज नहीं बता रहा, एंड इट इज एप्लीकेबल. इट इज जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पहले नॉलेज लगाना है, उसके बाद एप्टीट्यूड लगाना है, उसके बाद लॉजिक लगाना है, देन रिस्क या गेसवर्क. ठीक है, रिस्क या गेसवर्क. तो नॉलेज, एप्टीट्यूड या लॉजिक साथ में ही लगा लो इसमें, या एलिमिनेशन टेक्निक इसको बोल सकते हो आप. और लास्ट में आता है रिस्क या गेसवर्क. So this is the guesswork we are doing, and this guesswork is not random. I am saying this is not random. This is done based on the PYQs. So even if we get incorrect, then that is not a big issue. But this is something, how will I be attempting the paper based on the UPSC PYQs? So this is the question, and we don't know. See the option number A, option number C, option number D. तीनों लंबे लंबे दिए हुए हैं. नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, MG नरेगा. बट ये लीड बैंक स्कीम है यार. देखो 3 लंबे लंबे ऑप्शन है, सिर्फ एक छोटा ऑप्शन है. यूपीएससी कुड हैव गिवन दिस लार्जर वन. बड़ा ऑप्शन दे सकता था यूपीएससी, कुछ भी दे सकता था, बट क्यों नहीं दिया. इवन कि ये जो MG नरेगा है, जनरली यूपीएससी क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता था यार, बट नहीं, उसने पूरा नाम लिखा जस्ट टू मेक श्योर कि भाई एक और ऑप्शन बच जाए, दैट if there are people who have observed PYQs, they can take the risk, and based on the PYQs only we will mark in this question option number B, and this is our answer. And ये मत सोचना कि भाई मेरे पास आंसर की है, मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं तो I am solving based on the answer की. And to be honest I am telling you भाई, इसमें से अभी भी 100 क्वेश्चन में से मुझे शायद ही किसी 30 से 40 क्वेश्चन का आंसर पता होगा, जो बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस. एंड मेजरली क्वेश्चन में आई एम अप्लाइंग द लॉजिक. इवन कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें मुझे नहीं पता, इवन आई एम ट्राइंग टू अप्लाई द लॉजिक. अगर लॉजिक लगाता भी हूं उसके बाद भी वो क्वेश्चन गलत होता है तो आई एक्सेप्ट इट, बिकॉज लॉजिक का एप्लीकेबिलिटी 100% नहीं है. एंड इस क्वेश्चन में यही लॉजिक है कि ओड वन आउट. देयर विल बी पीपल हु विल से कि भाई स्किप दोस क्वेश्चंस, बट जब वो वीडियोस पार्ट्स में बनाते हैं एंड अल्टीमेटली जब वो क्वेश्चन नंबर 1 to 100 जाते हैं, सो देयर आर मोर देन 10 क्वेश्चंस, 10 to 15, इवन समटाइम 20 क्वेश्चंस. मैंने कुछ रोटा देखा है, बोल देते हैं भाई स्किप कर दो. with while telling they say कि skip कर दो, but ultimately when you calculate भाई ये 20 क्वेश्चन हो गए, and you can't take the risk. भाई 20 क्वेश्चन का रिस्क नहीं ले सकते. you can take the risk of 10 क्वेश्चन कि भाई 10 क्वेश्चन स्किप कर दिए, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन. ठीक है, तो भाई 20 क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते. सो वी हैव टू टेक द रिस्क, एंड दोज रिस्क द रिस्क टेकिंग एपेटाइट दैट विल डेवलप ओनली बेस्ड ऑन द PYQs. एंड दैट्स वाई लाइक जो मैंने अपनी SFG की समरीज है उसमें ट्रैप्स देने बंद कर दिए हैं. एंड दिस इज द ओनली रीजन वाई आई एम नॉट गिविंग द ट्रैप, बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो टेस्ट होते हैं उसमें वो चीज एप्लीकेबल नहीं होती. एंड इवन इफ आई टेल पीपल थ्रू द ट्रैप्स इन द समरीज PDFs, that will not help much. So it is better if we apply those things on the PYQs. So this is the trap, this is the logic based on which such questions can be solved with the help of risk. ठीक है. Now comes to question number 62. With reference to the management of minor minerals in India, consider the following statements. State governments have the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals. by state government है. सबसे पहले तो मैं इसे अंडरलाइन कर दूंगा क्योंकि it is possible कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो बट स्टेट गवर्नमेंट के साथ रिप्लेस कर दिए. Let's read statement number 2. State government have the power to grant mining lease of minor minerals, but the power regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lies with the central government. ठीक है. अब देखो statement number 2, statement number 3. State government have the power, state governments have the power. So what logic says कि भाई 2 और 3 तो एक साथ सही नहीं होंगे. So I will cut them. 2 और 3 मैं एक साथ नहीं डालूंगा.
सो अब ना आ जाओ स्टेटमेंट नंबर 1, सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द लॉ प्रिवेलिंग इन द कंट्री। जो सैंड जो है माइनर मिनरल है भाई, ठीक ही है, जनरल चीज़ है। और जैसे हम 11th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अपनी 12th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स वाली, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली, सो वी गेट टू नो कि भाई सैंड इज अ माइनर मिनरल। तो उसके बेसिस पे इसका आंसर हो जाएगा ए। अब स्टेटमेंट 2 को दोबारा पढ़ो भाई, इतना होता ठीक था, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ मिनरल माइनर मिनरल्स, बट आई टोल्ड यू द ट्रैप ऑफ यूपीएससी, बट एक्सटेंशन दे दिया ना साथ में, बट द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटिंग टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई ठीक है, लीज वो ग्रांट करेंगे, रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ऐसा क्यों, क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में? सो बेस्ड ऑन दिस आंसर विल बी ए। दिस इज जस्ट कि भाई यहाँ ट्रैप है, यहाँ लॉजिक अप्लाई हो रहा है, एंड दिस इज समथिंग विच यू नो कि भाई नॉलेज के बेसिस पे हो रहा। सो अगेन आई एम सेइंग कि नॉलेज इज द किंग। चलो क्वेश्चन नंबर 63 आ जाओ भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। पहली बात तो ऑल ऑफ इंडियाज डेट, क्यों भाई हम इंडिया, हमने मसाला बॉन्ड पढ़ा है या महाराजा बॉन्ड्स पढ़े हैं, तो क्या सारा डेट इंडिया का जो है अपना उसमें है, मसाला या महाराजा दूसरे में आता है, तो क्या सारा डेट इंडिया का डॉलर्स में हो रहा? क्यों हम ईयू से पैसा नहीं दे सकते? जापान हमें पैसा नहीं देता, तो क्या जापानीज करेंसी में हमारे पास पैसा नहीं हो रहा? सो इट बिकम्स रॉन्ग एंड इट इज एक्सट्रीम एज वेल। सो वी आर नॉट जस्ट catching the words and based on that we are marking it incorrect. No, we are understanding the essence of the statement, we are understanding the soul of the statement. So based on this, statement number 2 becomes wrong and option या तो A हो रहा या D हो रहा। Most of India's external debt is owned by governmental entities। अब देखो भाई ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसमें मेरा थोड़ा बायस है बिकॉज मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स मुझे पसंद है एंड इट इज माय ऑप्शनल एज वेल, तो ये सब चीज़ें मुझे पता है। बट अब इसमें एक ही भाई लॉजिक वाली बात है कि अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है उस साल का, तो उसमें ये सब चीज़ें कवर होती हैं, जनरली बताते हैं, मतलब जो अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, सॉरी अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, हाँ भाई, तो जो अपने हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में बताते हैं। बट अब जिसने नहीं पढ़ा तो लॉजिक कहता है कि भाई स्टेटमेंट 1 मॉडरेट स्टेटमेंट है एंड उसके बेसिस पे दोज पीपल हु हैवंट रेड द इकोनॉमिक सर्वे प्रॉपरली, या जो जिनको ये डाटा के बारे में नहीं पता है, सो उसके बेसिस पे अगर लॉजिक अप्लाई करना है तो अपना ऑप्शन वैसे ए हो जाएगा, बट इसका आंसर है डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये है स्टैटिक चीज, ये इट इज एक्सपेक्टेड भाई आपको पता होना चाहिए, पब्लिक डेट क्या है, एक्सटर्नल डेट क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड एक ये बीच में थोड़ा सा मैं थोड़ा साइड लाइन होकर बताता हूँ। जब कोविड से पहले ना हमारे पास इंडिया के ऊपर काफ़ी डेट है, ठीक है, तो कोविड से पहले क्या चल रहा था कि चीप रेट रेजिम चल रही थी इंडिया, मतलब वर्ल्ड के अंदर भाई 0% या 8% के ऊपर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहे थे। सो इट वाज एडवाइज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि भाई इतने एक्सपेंसिव लोन जो हमने इंडिया में ले रखे हैं या बाहर से ले रखे हैं, उनकी जगह हम फॉरेन लैंडिंग करते हैं, हम फॉरेन से बोरन करते हैं जो कि चीप रेट रेजिम पे है, एंड इंडियन गवर्नमेंट्स वो लोन लेती तो इंडियन गवर्नमेंट को वो लोन सस्ते मिल जाते बिकॉज ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया। तो हम इस सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम लोन लेते एंड वी कुड हैव पेड बैक द प्रीवियस लोन। तो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन तो भले इसमें करते हैं हम, ठीक है, बट इससे क्या होता है ना कि जो इंटरेस्ट पेमेंट का ऑब्लिगेशन है वो कम हो जाता है, उससे हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होता है। इफ यू ऑब्जर्व कि जो बजट है ना, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का बजट है, तो जो उसमें एक्सपेंडिचर होता है वो 1/5 जो है 20 रुपीज आउट ऑफ द 100, 20% आई एम सेइंग, वो हमारा जाता है सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में। सो इट वाज एडवाइज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018 और 2019 कि भाई जो है 2017 और 2018 कि भाई लो इंटरेस्ट रेजिम चल रही है अभी ग्लोब में, आप वहां से सस्ता इंटरेस्ट पे लोन लीजिए एंड यू पे योर प्रीवियस लोन्स, तो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन कम होगा, एंड उसके बेसिस पे ही ये क्वेश्चन सोर्स हुआ है, उसके बेसिस पे ही ये क्वेश्चन सोर्स हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे ये डिबेट चल रही थी। सो इफ समथिंग इज इन न्यूज विच इज लाइक लार्जली डिबेटेड, सो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू हैव द अवेयरनेस अबाउट सच टॉपिक्स। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड आवर आंसर इज डी। ये नहीं किया इंडिया ने, लाइक फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था दैट वी विल टेक 10% लोन फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन कंट्रीज टू पे लाइक टू जस्ट ऑन अ ट्रायल बेसिस, बट इंडिया में जो थोड़ा अपना एक्सट्रीम विंग है, जो लेफ्ट विंग है, उन्होंने इस चीज़ को लाइक ऑब्जेक्ट किया था एंड गवर्नमेंट ड्रॉप दिस आइडिया। तो बट चल ठीक है, दिस इज नॉट इन आवर हैंड, बट ये था कि भाई उस टाइम पे डिबेट चल रही थी एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन, दिस इज द रीजन ड्यू टू विच यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। So question number 64, which of the following is not included in the assets of a commercial bank? भाई ये प्योरली नॉलेज वाला क्वेश्चन है, इसमें odd one out मत लगा देना,
कि भाई एडवांस डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट ये तीनों छोटे छोटे हैं और ये बड़ा है, ये आंसर है। नहीं, आई टोल्ड यू व्हेन क्वेश्चंस रिक्वायर यू टू सॉल्व विद नॉलेज, तो भाई नॉलेज ही लगानी है। जिस टॉपिक में नॉलेज है पहले नॉलेज लगाओ, एप्टीट्यूड बाद में लगाना। एंड इफ यू से कि भाई मैंने ये चीज नहीं पढ़ी है इकोनॉमिक्स में या इतनी बेसिक नॉलेज मेरे पास नहीं है, देन आई एम सेइंग माय फ्रेंड यू हैव टू डू योर फाउंडेशन प्रॉपर्ली बिफोर अटेम्प्टिंग 2026 का पेपर, बिकॉज यूपीएससी गिव सच इजी क्वेश्चंस एंड यू कांट मिस सच क्वेश्चंस। ठीक है, सो डेट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट, कि एसेट में क्या नहीं आता। अब फॉर एग्जांपल एसेट में क्या आएगा कि भाई जो मेरी प्रॉपर्टी होगी वो मेरा एसेट होगा, और जो मेरे लिए उधारी होगी, जो मेरे लिए लाइबिलिटी होगी, जो मेरे को वापस पे करना है, दैट विल बी माई लाइबिलिटी। सो कमर्शियल बैंक के लिए क्या क्या एसेट्स होगा। इन्वेस्टमेंट तो सबके लिए एसेट होती है कि इफ आई इन्वेस्ट इन गोल्ड, इफ आई इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सो दैट इज माई एसेट। मनी एट कॉल नोटिस, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, भाई किसी को मैंने मनी दिया है उधारी पे, लाइक कॉल नोटिस पे या शॉर्ट नोटिस पे किसी को मनी दिया है मैंने, सो वो मेरा एसेट ही है ना। मैंने लोन दिया किसी को, तो इफ समवन इज गिविंग लोन तो वो तो एसेट ही होगा आपका। एडवांसेस है, एडवांसेस है भाई, मैंने किसी को लोन दिया 1000 रुपये का, फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड ने 1000 रुपये आपसे मांगे, तो भाई वो उसकी लाइबिलिटी और आपका एसेट है ना, ये वो आपको वापस दे रहा, तो आपके लिए तो वो एसेट हुआ। डिपॉजिट्स हैं भाई, ठीक है, अब आपके पास आपके लाइक किसी फ्रेंड ने आपको 1000 रुपये दिए और बोला कि भाई 1 साल बाद मुझे वापस दे देना, या आपको नीड थी, आपने अपने फ्रेंड से 1 साल बाद अपने फ्रेंड से पैसे लिए और बोला कि 1 साल बाद मैं वापस दे दूंगा। सो दिस 1000 रुपीज क्या हुआ, सामने वाले का डिपॉजिट है आपके पास, तो आपकी लाइबिलिटी है, सो दिस कैन नॉट बी योर एसेट, सो दिस बिकम्स द आंसर। सो आंसर बी। भाई थोड़ा ठीक है, मेरे को ना समझाना नहीं आता इतना अच्छे से, आई एम लर्निंग दिस, बट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट सच क्वेश्चन आर, ठीक है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड कि भाई आप इनको नॉलेज से ही सोल्व करो, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड सच बेसिक थिंग्स। यूपीएससी पूछता है, एंड मैं 2023, 24, 25 के पेपर में बताऊंगा कि दीज क्वेश्चंस वर जस्ट बेसिक क्वेश्चंस, इवन आई गोट दोज क्वेश्चंस रॉन्ग जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग। सो या हाँ, बीच में मैं पूछ लेता हूँ यार, आई एम थिंकिंग कि 2019 के बाद ना 2020 का नहीं करने की बजाय एक बार 2024 कर लूँ। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि भाई 2020 करना चाहिए पहले या 2024 करना चाहिए, क्योंकि आई एम कंफ्यूज अबाउट दिस। सो वट एवर यू विल टेल मी आई विल डू अकॉर्डिंगली। सो ठीक है, बताना मेरे को। Question number 65. In the context of India, which of the following factor is our contributor or contributors to reducing the risk of a currency crisis? भाई currency crisis हो रहा है और उनको reduce करना है, तो भाई कैसे होंगे currency crisis, कैसे reduce हो रहा, जब हमारे पास उसका स्टॉक ज्यादा हो रहा और वी कैन मैनेज। जैसे अभी ऑयल क्राइसिस चल रहा है, तो ऑयल क्राइसिस में क्या है, अगर हमारे पास डॉलर ज्यादा नहीं हो रहा तो हम ऑयल नहीं खरीद पाएंगे, या फॉरेन करेंसी हमारे पास नहीं हो रही तो हम नहीं खरीद पाएंगे उसको। तो उसके लिए क्या चाहिए, करेंसी क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए, इवन ऑयल क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए क्या चाहिए भाई, हमारे पास सरप्लस फॉरेन रिजर्व होने चाहिए। सो दिस इज इन एसोसिएशन विद दिस ओनली, कि भाई हमारे पास फॉरेन रिजर्व होने चाहिए, हमारे पास एक्सटर्नल करेंसी होनी चाहिए कि करेंसी क्राइसिस को मैनेज किया जा सके, क्योंकि वी आर नॉट अ क्लोज्ड इकोनॉमी, वी आर एन ओपन इकोनॉमी। सो रिड्यूसिंग द रिस्क, रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियन अब्रॉड्स। अब भाई मिडिल ईस्ट से जो पैसा भेजेंगे, रेमिटेंसेस भेजेंगे, उससे क्या डॉलर इंडिया के अंदर आएगा, ठीक है, तो हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, करेंसी क्राइसिस अवॉइड होगा। तो थर्ड तो ठीक है, अब थर्ड जिसमें नहीं है वो काट दो। अब फर्स्ट कॉमन है, अब सेकंड आ जाएगा इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। भाई गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, इससे करेंसी क्राइसिस का कोई रिलेशन नहीं है। करेंसी क्राइसिस जनरली जो है फॉरेन कंटेक्स्ट में हम यूज करते हैं, ठीक है, ये थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। इवन करेंसी क्राइसिस का आपको मतलब ज़्यादा पता नहीं है, चलो इंडिया के कंटेक्स्ट में ही देख लो, थोड़ा मतलब एग्जैजरेशन लेके हम कर लेते हैं कि भाई करेंसी क्राइसिस क्या हो सकता है कि इंडिया का जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, इंडिया के रुपी की ज़्यादा डिमांड नहीं है, सडन डेप्रिसिएशन हो गया, या फिर जो है फॉरेन जो डॉलर है, ये जो यूरो है या जैपनीज येन है वो हम अवेलेबल नहीं है इजीली, तो ये करेंसी क्राइसिस है भाई। शॉर्टेज ऑफ करेंसी है या डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, तो ये करेंसी क्राइसिस होता है, ठीक है। अब उस बेसिस पे क्या है कि भाई इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दे अपना, तो उससे करेंसी क्राइसिस का क्या रिलेशन है, फॉरेन करेंसी से उस पर क्या इतना बड़ा कुछ मतलब इम्पैक्ट आएगा। तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द टॉपिक, एंड विद दिस लॉजिक वी एलिमिनेट दिस एंड वी रीच टू द आंसर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 66. Which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken in politics in the recent past? भाई ये है सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड, एंड आज लिख लो, अगर सेंटर स्टेट रिलेशन में कुछ टॉपिक आया हुए हैं और वो आपको नहीं आता तो सरकार या कमिश्नर उसमें ऑप्शन है तो मार देना,
कि सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन इतनी ज़्यादा थी कि भाई ये कहीं ना कहीं कवर हो रहा, और यही इसका आंसर है। कोई तुक्का नहीं है, कुछ नहीं है, जिसने पढ़ा है वो सॉल्व कर ले रहा। बट सच थिंग्स आर जनरली लाइक वी डो नॉट फाइंड इन आवर नॉर्मल रेगुलर सोर्सेज, तो हम कई बार इसे नहीं पढ़ पाते हैं, या पढ़ते भी तो वो दिमाग में नहीं होता है। सो इट इज गोइंग विद द सेम थिंग भाई, जो सबसे कॉमन आपको दिखे, सबसे पॉपुलर जो आपको दिखे, और सेंटर स्टेट रिलेशन पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर सरकारी कमीशन है। सो आई विल मार्क दिस आंसर एज सी। 66 का अपना है सी। नाउ आओ 67 पे आते हैं। Which of the following is issued by a registered foreign portfolio investor to oversee who want to be part of Indian stock market without registering themselves directly? ठीक है भाई, अभी है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिसे आता है ठीक है, जिसे नहीं आता उसके लिए है कि भाई आपको लास्ट में रिस्क लेना है। तो ये हो सकता है नोट है, तो या तो आंसर सी होगा या आंसर डी होगा। इसका आंसर पार्टिसिपेटरी नोट है, ठीक है। और अभी है थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भाई, ये सब टॉपिक्स आपको एक्सपेक्टेड हैं कि यू रीड देम फ्रॉम द स्टैटिक सोर्स। मृणाल सर ने इनको अच्छे से कवर किया है, एंड इवन एक दो टीचर्स और हैं जैसे जयंत परीक्षित सर हैं, उनका भी कंटेंट इसके बेसिस पे अच्छा है। तो हाँ, लाइक जस्ट टेलिंग यू सम सोर्सेज कि भाई इकोनॉमी आप कहाँ से पढ़ सकते हो, या तो मृणाल सर का है, या फिर अपने जयंत परीक्षित सर हैं, ये वाजीराम में पढ़ाते हैं, तो इनका है। एक है होप तुशांत यादव सर, होप तुशांत उनका चैनल है। उनका इकोनॉमी का कोर्स जनरली अच्छा है, स्पेशली फॉर दोज हु आर लाइक स्टक विद द इकोनॉमी पार्ट, जिनको लाइक दोज हु आर अफ्रेड, तो जिनको फाउंडेशन करना है ना अपना इकोनॉमी में, अच्छा बेसिक जिसे डेवलप करना है, तो तुषांत यादव सर का कोर्स है, वो यूट्यूब पे आपको फ्रीली मिल जाएगा। अब टेलीग्राम जैसी चीज़ें तो नहीं बोलूँगा ऑब्वियसली मैं, बट आइडियली इफ यू कैन परचेज दिस कोर्स ऑफिशियली आप परचेज कर सकते हो, तो भाई आप परचेज कीजिए। एंड यूट्यूब पे तो शान सर का कोर्स मिल जाएगा आपको, आप यूट्यूब पे इसे रेफर कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई फ्रेंड आपकी हेल्प कर सके तो आप उनसे रेफर कीजिए। रही बात शिविन सर का कोर्स, भाई अगर आपको समझ में आ रहा है तो यू कैन रेफर टू दिस। मुझे इनका इतना ज़्यादा समझ नहीं आता, बिकॉज ये अननेसेसरली डेप्थ में जाते हैं भाई। क्रिटिसिज्म है, थोड़ा हेल्दी क्रिटिसिज्म है, ये अननेसेसरली डेप्थ में जाते हैं। भले ठीक है, जस्ट अ स्मॉल मतलब डाइवर्जन है, ठीक है। एक यूपीएससी अपना सीएससी का एग्जाम करवाता है, एक सीडीएस का एग्जाम करवाता है, एक सीएपीएफ का एग्जाम करवाता है। भाई सीडीएस और सीएपीएफ की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, सीएससी की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। अगर इनके बेसिस पे आप सीएससी वालों को पढ़ाओगे तो पढ़ाने में तो भाई कुछ भी पढ़ा सकते हो, पढ़ाने में आप सब कुछ पढ़ा दो, बट लास्ट में यही आता है कि भाई जो बच्चा इको के नाम से डरा हुआ है उसको आप ये सब चीज़ें पढ़ा दोगे, इतनी डेप्थ में पढ़ाओगे, तो ऑब्वियस है वो थोड़ा कंफ्यूजन है। आई एम नॉट सेइंग यू उनका कंटेंट बुरा है, उनका कंटेंट अच्छा है। पर्सनली 2025 में मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए उनका कंटेंट रेफर भी किया था, बट नॉट फॉर एवरी टॉपिक। इफ यू आर रियली स्केर्ड ऑफ समथिंग लाइक इकोनॉमी, फाउंडेशन बेसिक से भी डर लगता है, देन तुषार सर के जो है अपने लेक्चर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आई गेस 3 साल पुराने हैं, बट फाउंडेशन कवर हो जाएगा आपका अच्छे से, तो यू कैन रेफर टू दिस। एंड सॉरी फॉर द डिविएशन, जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि इकोनॉमी में मैंने देखा काफ़ी बच्चे लाइक इसमें थोड़ा रहते हैं कि भाई डाउट में कि इकोनॉमी कहाँ से करें। Let's come to question number 68. Consider the following statement. As per the law, the compensatory afforestation fund management and planning authority exists at both national और state level. कैंपा के बारे में बात हो रही है, ठीक है। People's participation is mandatory in the compensatory of afforestation program carried out under the CAMPA. भाई देखो, मैंने पहले भी बताया था जहाँ भी ये मैंडेटरी दिया हुआ है, मैंडेटरी जैसे वर्ड आ जाए ना तो भाई मैंडेटरी हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया, तो अपने कान खड़े कर लेना, आंखें खोल लेना। भाई बोल रहा है कि पीपल का पार्टिसिपेशन नेसेसरी है, मैंडेटरी है अंडर कैंपा। क्या है भाई, अभी तक कुछ सुना है? कभी किया है? कभी गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई मैंडेटरी है? कभी नोटिफिकेशन आया है? नहीं आया ना। दीज ऑल थिंग्स आर वॉलंटरी, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के लिए। We have Article 21, we have Article 19, so it is our 21, 19, so it is about our choice. Things cannot be forced unnecessarily. जहाँ पर voluntary आना चाहिए वो voluntary रहेगा. So statement 2 will be incorrect. एंड स्टेटमेंट 1 को मैं जनरली करेक्ट विद बेस्ड ऑन लॉजिक। भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये बोल रहा है कि कैंपा के बेसिस जो लो है वो जो लो है उसके बेसिस पे जो कैंपा है वो नेशनल लेवल पे भी हो सकती है और स्टेट लेवल पे भी होगी। सो जनरली आई विल कंसिडर दिस करेक्ट। अगर आपने स्टैटिक नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है, मैं इसे करेक्ट मानूंगा। एंड एक चीज़ है, एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको यहाँ देता हूँ, ठीक है। एक स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, ऑप्शंस हैं, स्पेस ले लो, बना लेते हैं अभी, है ना, ठीक है। एक छोटा सा लॉजिक ये है, स्टेटमेंट 1 है ऐसे, स्टेटमेंट 2 है ऐसे। अब ऑप्शंस दिए होंगे, ए कह रहा है ओनली 1, बी कह रहा है ओनली 2, सी कह रहा है बोथ, डी कह रहा है नीदर, ठीक है, नन या नीदर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपको पता चल गया कि भाई स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग,
ठीक है, बट वी डोंट नो अबाउट स्टेटमेंट वन, देन इन दो सिचुएशन इन विच one statement is wrong, I'm saying, repeating, one statement is wrong and you are not sure about other statement, you are not sure about other statement, then mark A और B. अगर A गलत है और B के बाद सॉरी 1 गलत है और आपको 2 का नहीं पता, so you will mark option B. If 2 is wrong and you are not aware about 1, you will mark A. You will not leave such questions. भाई ऐसे क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है. सो इफ यू आर मार्किंग हियर बी एंड यू नो कि बी स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग, फॉर एग्जांपल इसमें पता है कि भाई स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, बाय लॉजिक वी हैव डिड्यूस्ड, बट वी डोंट नो कि वेदर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और नॉट, सो वी विल मार्क ए एंड इसका आंसर भी ए है. ये है क्वेश्चन 2025 में क्वेश्चन आया था कि आरबीआई वो बिजनेस वाला कुछ रिपोर्ट बनाता है. मुझे पता था कि भाई आरबीआई दिया हुआ है, इट इज वेरी इजी टू ट्वीट, आरबीआई को बदला जा सकता है, सो आई मार्क स्टेटमेंट 1 रॉन्ग. ठीक है, मुझे स्टेटमेंट 2 नहीं पता थी, बट मेरे पास लॉजिक था बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज. अगर स्टेटमेंट 1 गलत है एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट स्टेटमेंट 2 और द सेकंड स्टेटमेंट, देन मार्क द अदर ऑप्शन. स्टेटमेंट 1 गलत है तो आई मार्क बी, तो उसका आंसर भी बी ही था, बिकॉज इट इज द टेंडेंसी ऑफ एग्जामिनर कि भाई वो नीदर बहुत कम देता है. 100 क्वेश्चन है तो मुश्किल से 5 क्वेश्चन में नीदर होगा, अदरवाइज कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू टेल यू. Let's come to question number 69. In India, which of the following review the independent regulator in sectors like telecommunication, insurance, electricity, etc. भाई 5 है. I told you all 5 will never be correct. कुछ exceptions होंगे, but यहाँ वो exception नहीं मिलेगा आपको. In India, which of the following review the independent regulator in sectors like, भाई नीति आयोग का तो कोई काम नहीं है, ठीक है, नीति आयोग का कोई काम है. रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर लाइक टेलीकम्युनिकेशन. नीति आयोग कभी रेगुलेट करती है किसी चीज को, या रिव्यू करती है किसी चीज को, किसी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को. फॉर एग्जांपल नीति आयोग को बोल दो कि भाई आरबीआई को रिव्यू करो, करेगा वो? उसका मैंडेट ही नहीं है वो, तो नीति आयोग तो आंसर नहीं हो सकता. या तो आंसर है ए, आंसर है तो 1 और 2 ए में, या आंसर है अपना बी, यानी कि 1, 3 और 4. अभी कभी सुना है फाइनेंस कमीशन ने आरबीआई को रिव्यू किया है? कभी सुना है इसके बारे में? आरबीआई ने सेबी को रिव्यू किया है, कभी सुना है इसके बारे में? सो हाउ विल फाइनेंस कमीशन विल रिव्यू समथिंग? एंड चलो भाई ये नहीं सुना, फाइनेंशियल लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, अब ये नहीं सुना, तो क्या पता भाई इसके फॉर्मों में आके आप लगा दो. बट नहीं, हमने क्या सुना है कि कभी भी कोई चीज़ रिव्यू करती है, या तो वो पार्लियामेंट की कुछ कमेटी होती है, या फिर जनरली कुछ, या तो स्पेशल कमेटीज अपॉइंट की जाए कि भाई कुछ घपला हुआ है, कुछ धांधली हुई है, तो उसके लिए अपॉइंट किया गया है. बेसिकली ये तो पार्लियामेंट की ही कमेटीज वहाँ पर होती है. सो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक आंसर विल बी ए. दिस इज वन एक्सेप्शन जहाँ पर 3 नहीं है, बट या एक्सेप्शंस कैन नॉट बी द रूल. सो दिस इज समथिंग, आंसर इज ए. ऐसे क्वेश्चन जब आपको नहीं पता तो बाय लॉजिक यू कैन डिड्यूस. भाई मुझे भी इसका आंसर टू बी ऑनेस्ट नहीं आता. इट इज जस्ट व्हेन आई एम सॉल्विंग विद यू व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आई हैव अप्लाइड दिस लॉजिक एंड आई डोंट नो द आंसर. आई लाइक लास्ट में जब मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आई जस्ट चेक वंस कि भाई जो आंसर मैंने बता दिया अगर वो ठीक है तो ठीक है, और जहां पर वो लॉजिक नहीं लगते एंड आंसर इज डिफरेंट, सो आई चेक फ्रॉम द आंसर कि भाई ठीक है या नहीं है. जैसे भी मैंने ए बताया, सो नाउ आई एम चेकिंग एंड द आंसर की सेज कि ए ही है. सो बेस्ड ऑन दिस आवर आंसर इज करेक्ट. बट इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जहां पर लॉजिक से आंसर नहीं आ रहा था. सो दिस इज द ट्रांसपेरेंसी लेवल. एंड इन द लास्ट, जब ये 2025 की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, 25 तक के पेपर हो जाएंगे, सो आई विल टेल यू माई सोर्सेज कि मैंने ये सब चीजें कहाँ ट्रांसफर की थी. ठीक है, सो द ट्रांसपेरेंसी विल बी देयर, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि भाई आप वो सब खरीदो, क्योंकि वो बहुत महंगे कोर्स हैं उनके, जरूरी नहीं है सब चीजों पर पैसा लगाना. सो इफ आई एम डूइंग दिस फॉर यू, देन कंसिडर कि भाई ये 4-5 प्लेटफॉर्म, 4-5 टीचर्स, 4-5 एक्सपीरियंस लोगों की नॉलेज है जो मैंने अपने अंदर इम्बाइब की है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस with reference to India's 5-year plan. Which of the following statement is or are correct? In the 5th 5-year plan, for the first time, the financial sector was included as an integral part of the plan. भाई हो सकता है. पहली बात तो तीनों फैक्चुअल स्टेटमेंट है. इट इज हाईली इम्पॉसिबल. 99% चांस है कि भाई डी तो नहीं होगा. सो आई विल मार्क डी एज इनकरेक्ट. भाई डी तो नहीं होगा. क्यों? भाई फैक्चुअल क्वेश्चन है, किसी एक को भी ट्रीट किया जा सकता है, एंड व्हेन यू एनालाइज द पीवाईक्यूज आपको ऐसा मिल जाएगा. The 4th 5-year plan adopted the objective of correcting the early trend of increased concentration of wealth and economic power. चलो भाई पॉसिबल है. From the second 5-year plan, there was a determined thrust towards substitution of basic and capital goods industry. अगर आपने पढ़ा हो तो फर्स्ट 5-year प्लान्स में हमने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया था, जो हमने डोवर मॉडल को यूज किया था. सेकंड 5-year प्लान में हमने महालनोबिस मॉडल को फॉलो किया था, एंड वी वर फोकसिंग ऑन द हैवी इंडस्ट्रीज एंड द की इंडस्ट्रीज. तो हमारे उसके ऊपर फोकस था. सो बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. अब देखो थोड़ा यार बेसिक नॉलेज तो चाहिए आपको. बेसिक नॉलेज के विदाउट तो ये क्वेश्चन होगा नहीं. तुक्का मारना तो भाई किसी में भी मार दो, बट सर्टेन क्वेश्चन रिक्वायर सर्टेन नॉलेज. सो बेस्ड ऑन दिस भाई ठीक है,
सब तो ठीक होंगे नहीं, बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चन है, एंड वी अज्यूम कि फर्स्ट ठीक है, लॉजिक कहता है, नॉलेज कहती है कि फर्स्ट ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस माई आंसर विल बी ए, क्योंकि ये वन जो है सिर्फ ए में है। चलो बाकी ये देख लेते हैं कि भाई वन इसमें भी है, या तो आंसर ए में से हो रहा है या डी में से हो रहा है। अब टू है, और अब ठीक है, अब चलो थर्ड स्टेटमेंट की वही है कि भाई फर्स्ट 5 ईयर फिफ्थ 5 ईयर प्लान में फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड किया जाता भाई प्लान के अंदर। देखो यार 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर का प्लान का मतलब है भाई 20 साल के बाद, 1970 के आसपास फिफ्थ 5 ईयर, मतलब एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है मेरे को, बट 1950 के बाद 20 साल के बाद फिफ्थ ईयर प्लान में फाइनेंशियल सेक्टर को फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया भाई। अननेसेसरी चीजें हैं यार, ये इलॉजिकल चीजें हैं। तो पहला लॉजिक तो कहते हैं कि भाई तीनों फैक्चुअल है, तो ऑल तो नहीं हो सकता। उसके बेसिस पे चलो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट किया, फर्स्ट हिटलर ऑप्शन या तो ए हो रहा है या डी हो रहा है। अब थर्ड के ऊपर डिसाइड करना है हमें कि भाई ये हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड ये बोल रहा है कि भाई फिफ्थ 5 ईयर प्लान था जब हमने फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड किया। सो दिस इज समथिंग एब्सर्ड, दिस इज समथिंग इलॉजिकल कि भाई 20 सालों में हमने फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। सो दिस इज माई लॉजिक। इस लॉजिक के बेसिस पे मैं इस स्टेटमेंट को गलत मानूंगा। दो लॉजिक इस चीज को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दिस माई आंसर विल बी ए, एंड आंसर की ऑल्सो सेज कि इसका आंसर ए है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 71. With reference to Asia and Infrastructure Investment Bank (AIIB), consider the following statements. India AIIB has more than 80 members. ठीक है भाई, पॉसिबल है। India is the largest shareholder in AIIB. इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, और AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। अब देखो स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 3 दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक बोल रही है कि भाई 80 से ज्यादा मेंबर है, तीसरी बोल रही है कि भाई इंडिया में मतलब एक भी मेंबर नहीं है, एशिया से एक भी मेंबर नहीं है, मतलब एशिया के आउटसाइड। क्या एशिया में 80 कंट्री हैं भाई? 80 कंट्री हैं हमारे पास एशिया में भाई? पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर मतलब इतना बड़ा बैंक है भाई, और 80 मतलब एशिया के बाहर कोई कंट्री होगी ही नहीं। और जबकि स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि भाई 80 से ज्यादा कंट्री है। तो किसी ने बेसिक पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा, चलो लॉजिक के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड दे डू नॉट गो हैंड इन हैंड, दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट एंड थर्ड कैन नेवर बी करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड कैन नेवर बी करेक्ट। एंड एक चीज चलो, और लास्ट एक लॉजिक यहाँ पर बोल दूं, बता देता हूँ। जब भी बोले ना इंडिया इज द लार्जेस्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, इंडिया इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जब भी इंडिया को कहीं लार्जेस्ट की इमेज में दिखाया जाए कि इंडिया इज लार्जेस्ट हेयर, दैट दोज स्टेटमेंट्स आर 7 out of 10 टाइम्स रॉन्ग। सो आपको नहीं पता कि इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर है या नहीं AIIB में, तो आप बेसिक लॉजिक पे, बेसिक PYQs की एनालिसिस के थ्रू आप इसे डिटरमाइन कर सकते हो कि इट इज ट्रू और नॉट। सो आई विल कंसिडर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। बेस्ड ऑन दिस आई विल कट B एज वेल, एंड माय आंसर विल बी A। सिंपल सा लॉजिक है, PYQs के बेसिस पे है कि भाई लार्जेस्ट दिया हुआ है इंडिया की कंटेक्स्ट में, तो वो जनरली इनकरेक्ट होता है, and the answer will be A. What was the purpose of intercreditor agreement signed by Indian banks? and यार देखो यार, ठीक है ना, एक थोड़ा और लॉजिक बताता हूँ भाई। इतने सारे कंट्रीज हो रही है, एशिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो एशिया में तो भाई चाइना तो हो रहा ही ना, जापान भी हो रहा। जब चाइना जापान है तो भाई उनका पोटेंशियल हमसे ज्यादा है, उनका पोटेंशियल हमसे ज्यादा, तो इट इज पॉसिबल ना कि भाई हमसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर वो हो, हमसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर वही हो। भाई चाइना ट्राइज टू डोमिनेट एवरीथिंग, चाइना ट्राइज टू इम्पोज इट्स हेजेमनी इन एशिया, स्पेशली एशिया एंड अफ्रीकन रीजन। तो भाई जब चाइना है, चाइना बैठा है, तो वो इंडिया का लार्जेस्ट शेयर होल्डर कैसे बनने देगा? सो वी कैन अप्लाई आवर लेटरल नॉलेज एज वेल। सो बेस्ड ऑन दिस ऑल्सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट एंड थर्ड आर इन कॉन्ट्रडिक्शन, या तो फर्स्ट ठीक होगी या थर्ड ठीक होगी, सेकंड ठीक नहीं है, सेकंड तो काट दिया, फर्स्ट और थर्ड एक साथ ठीक नहीं होने, सो आंसर विल बी ए। 72 बोल रहा है कि भाई पर्पस क्या है इसका, ICA का इंटरक्रेडिटर एग्रीमेंट signed by Indian banks and financial institutions recently to aim at faster resolution of stressed assets of 50 crore or more which are under consortium, to act as an independent regulator in the case of applications for for loans of 50 crore or more, to support the infra projects of central and state governments, to lessen the governments of India's पेरिनियल बर्डन ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। चलो भाई मैंने तो नहीं पढ़ा ये क्या होता है ICA, बट मेरा लॉजिक क्या कहता है, जब भी किसी दो स्टेटमेंट्स में थीम ठीक होगी, सेम होगी, तो आंसर विल बी ईदर ऑफ देम। सो स्टेटमेंट नंबर C, लोन ऑफ 50 करोड़ मोर, एसेट्स ऑफ 50 करोड़ और मोर, या तो आंसर C हो रहा है या आंसर D हो रहा है। सो नाउ हियर यू हैव टू थिंक भाई C लगाऊं या D लगाऊं, भाई C लगाऊं या D लगाऊं। तो चलो भाई बैंक्स के बीच में है, इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक साइन हुआ है, एक क्रेडिटर का एग्रीमेंट हुआ है। तो ये एग्रीमेंट किसके लिए हो रहा? मेजर प्रॉब्लम क्या है लोन्स में? NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एक लेटरल नॉलेज का एप्लीकेशन बता रहा हूं कि UPSC अगर कोई क्वेश्चन बना रहा है तो उसमें ब्रॉड चीजें उठाना, कोई मेजर कंसर्न है उसको उठाना। लैंडिंग में सबसे बड़ा मेजर इशू क्या है, एप्लीकेशन पार्ट या NPA?
व्हेन वी रीड लोन, लैंडिंग का जब पार्ट पढ़ते हैं, व्हाई आर बैंक रिलक्टेंट, वो हिचकते क्यों हैं, वो रिलक्टेंट क्यों होते हैं लोन प्रोवाइड करने में, एप्लीकेशन के कारण नहीं, बिकॉज ऑफ एनपीए, उन्हें डर होता है कि भाई एनपीए ना हो जाए। सो एनपीए इज समथिंग विच इज ऑफ मेजर कंसर्न, विच इज अ ब्रॉड थीम देन द एप्लीकेशन पार्ट। सो बेस्ड ऑन द लॉजिक आई विल कंसिडर दिस डी। सो डी विल बी माई आंसर एंड दिस इज द आंसर। कोई ऐसा नहीं भाई मैंने आंसर की मैं इसका आंसर देखा, ये मैं सिर्फ अपने लॉजिक बता रहा हूँ कि इस लॉजिक के बेसिस पे ऐसी चीजें होगी। सो यू हैव टू थिंक द स्टेटमेंट्स फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, तभी प्री क्लियर हो रहा है भाई, तभी प्री क्लियर हो रहा है। कुछ बच्चे मतलब कुछ इवन टीचर्स भी बोलते हैं कि हमने यार लॉजिक नहीं लगाया, हमने तो प्योर नॉलेज है। भाई वो है इस इंडस्ट्री के एक्सेप्शंस। नॉट एवरीवन इज अ बुक बॉम्ब, भाई किताबी कीड़ा कोई नहीं बन सकता। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो भाई उनको आदत होती है इतना इंटेंसिवली पढ़ने के लिए, क्योंकि वो ट्रिक्स ढूंढ लेते हैं कि भाई ये कंटेंट है, हमें इतना शॉर्टलिस्ट करना है एंड वी जस्ट हैव टू रिलाई ऑन दिस मच। सो उस बेसिस पे उनकी ट्रेनिंग होती है, वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उनको पता होता है कि भाई हमें क्या पढ़ना है। बट नॉट एवरीवन इज अ बुक वर्म, नॉट एवरीवन इज अ डॉक्टर, नॉट एवरीवन इज एन इंजीनियर। तो भाई ऐसे लॉजिक लगाने पड़ते हैं, ऐसे लिटरल चीजें पता होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे क्लियर होता है प्रीलिम्स। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय, कौन करता है भाई, सेलेक्ट बोला है, अपॉइंट नहीं बोला, न्यूज में था बैंक बोर्ड ब्यूरो। इस टाइप नया रेगुलेटरी बना था 2020 में, फिर क्वेश्चन आया बैंक बोर्ड ब्यूरो के ऊपर ही 2020 में क्वेश्चन आया दोबारा। सो बैक टू बैक क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर। सो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, पीएन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी, भाई फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले कोई रेगुलेटरी बोर्ड ही नहीं सेट किया हो रहा बैंकिंग के लिए या फिर इंश्योरेंस के लिए या फिर कोई और ले लो यार, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए कुछ और कोई रखा ही नहीं रेगुलेटर, कोई होना नहीं, सिर्फ पेट्रोल के लिए सबसे पहले रेगुलेटर रखे होंगे, क्या इतना एब्सर्ड है भाई। चलो दूसरा पढ़ते हैं। वन ऑफ द टास्क ऑफ पीएनजीआरबी इज टू एंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट। जब भी यूपीएससी बोले इट इज वन ऑफ द टास्क, वन ऑफ द एप्लीकेशन, वन ऑफ द फंक्शंस, दैट इज जनरली करेक्ट, यू कैन एज्यूम इट करेक्ट। तो सेकंड तो ठीक है भाई, जहां सेकंड नहीं काट दो। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पीएनजीआरबी गो बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। भाई यहाँ बात कर रहा है नेचुरल गैस की, यहाँ बात कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की। तो अब जो एस्पिरेंट हो रहा वो ये कह रहा है कि भाई इन दोनों में तो थोड़ा डिजोनेंस है, इनों में सिंक नहीं हो रहा। सो इट इज पॉसिबल कि भाई क्या पता फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो और थर्ड में जो है वो इंस्टीट्यूशंस बदल दिए, क्या पता पीएनजीआरबी का ही कोई अपीलेट बॉडी हो जो वही उसी में जाता हो और इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल में नहीं जाता हो। सो इट इज ठीक है, ऐसे थिंकिंग करना ठीक है, बट द लॉजिक विच पीवाईक्यू सेज कि भाई अभी हमने पढ़ा है कि भाई फर्स्ट टाइम जो है वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में फाइनेंशियल सेक्टर है, तो वो भी तो गलत हुआ ना फर्स्ट टाइम। तो जब भी यूपीएससी ऐसा एम्फोसिस करे कि भाई फर्स्ट है, ऐसा वजह से बाबर वाज समवन हु इंट्रोड्यूस्ड दैट बारूद जो है वो इंडिया के अंदर जो है बाबर ने इंट्रोड्यूस किया, नहीं ना भाई वो गलत है ना। तो जब भी यूपीएससी से बोलता है कि भाई फर्स्ट दिस इज समथिंग फर्स्ट टाइम इज हैपनिंग इन इंडिया, भाई वो 90% गलत होता है। सो बेस्ड ऑन दैट लॉजिक आई विल कंसीडर स्टेटमेंट 1 रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 3 करेक्ट, एंड 1 को जैसे ही काटेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, एंड दिस इज आवर आंसर ऑल्सो। Now come to question number 75. With reference to communication technology, what is or are the difference between LTE? भाई स्टेटमेंट पढ़ना इन टाइप से क्वेश्चन में जरूरी है। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वोल्ट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। चलो भाई हमने मोबाइल में जनरली देखा है 2000 जब 16-17 का टाइम था तो हम देखते थे कि भाई 3G आ रहा है, 2G आ रहा है ऊपर सिग्नल में, LTE आ रहा है, E आ रहा है, वोल्ट आ रहा है। जब से 2018 में जब अपनी ये 18 में हुई ना नोटबंदी, 2016 में हुई थी नोटबंदी, तो ठीक है जब अपनी 16 में नोटबंदी हुई उसके बाद जियो आया तो ये वोल्ट LTE वोल्ट आने लगा था अपना, क्योंकि 4G चला था। तो उस बेसिस पे हम जो है जनरली एनालाइज करते थे, ठीक है। अब उसके बेसिस पे भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है अपनी, ये इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो LTE ही है और वोल्ट वॉइस ओवर यानी कि LTE तो है ही हमारे पास, उसके अलावा वॉइस भी मिल रही है। सो दिस इज समथिंग एडवांस्ड, दिस इज समथिंग एडवांस्ड। तो LTE कॉमनली मार्केटेड एज 3G टेक्नोलॉजी एंड वोल्ट इज कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस 3G। चलो भाई पॉसिबल है, हमें नहीं पता। और चलो दूसरा पढ़ते हैं, LTE डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड वोल्ट इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी। आई एम सॉरी जस्ट मिनट फर्स्ट। हाँ क्या बोल रहे हैं, LTE डेटा ओनली है और वोल्ट जो है वॉइस ओनली। अभी मैंने क्या बोला कि भाई वोल्ट वॉइस ओवर LTE है यानी कि समथिंग एडवांस्ड है, तो क्या पता LTE की फैसिलिटी हमारे पास हो। सो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक वी वुड से कि भाई स्टेटमेंट 2 में थोड़ा रपला है। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, भाई LTE में डेटा चलेगा, वोल्ट में सिर्फ वॉइस चलेगा। तो भाई ये तो कुछ लॉजिक बना नहीं ना। और ऐसे ही यूपीएससी को कुछ लॉजिक बनाना होता तो यूपीएससी ये डेफिनेशन मतलब फुल फॉर्म क्या देता, वो इतना भी तो लिख सकता था LTE और वोल्ट में क्या डिफरेंस है, बट यूपीएससी ने उसकी फुल फॉर्म दी जस्ट टू टेल दो सीरियस एस्पिरेंट भाई इनमें ये डिफरेंस है। अगर आपकी अवेयरनेस है, आपने पीवाईक्यूज एनालाइज किए हैं, आपका एप्टीट्यूड बना हुआ है, तो उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो and statement 2 becomes wrong. And I told you earlier as well, if you mark one statement incorrect and you don't know about the other statement whether it is true or not, just mark it correct. So my answer will be A and 75 का आंसर वैसे D है।
ठीक है, 75 का आंसर वैसे डी है। सो बेस्ड ऑन दिस माई लॉजिक गोज राउंड, बट मुझे कोई अफसोस नहीं है, एक क्वेश्चन गलत होता है तो होने दो। ठीक है, अब इसमें ना मतलब इस क्वेश्चन के बाद से ना एक चीज़ है कि अब ना मैं ये चीज़ बता देता आपको कि जैसे एडवांस्ड वर्ड यूपीएससी ने डाला ना, जनरली ये एडवांस्ड वर्ड भी ट्रैप्स होते हैं, ये सर्टेन की वर्ड्स होते हैं, बट ना यार ऐसे वर्ड्स ना एग्जाम में पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे मैंने अभी नहीं कैच किया। आई एम टेलिंग यू दिस, मेरा फोकस गया था इस वर्ड के ऊपर, बट मैंने कैच नहीं किया। वाई कैच मतलब क्यों मैंने, वाई डिड नॉट आई कैच, बिकॉज एग्जाम में भी आपके साथ ऐसा होगा, देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस वेयर यू नॉट बी एबल टू कैच द क्वेश्चन। भाई टाइम कम बचता है, क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं, एग्जाम का स्ट्रेस होता है, गर्मी होती है, तो भाई बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एंड देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर ये नहीं हुआ, जहां पर ये चीज मिस हो गई, तो ये मैंने यहाँ डेलिकेटली मिस की थी, बट ऐसी चीजें होती हैं। एंड बेस्ड ऑन दिस भाई जैसे ये वर्ड्स है ना एडवांस्ड, जो फाइन अननेसेसरी एडजेक्टिव्स यूपीएससी लगाता है, तो वो चीज़ें जनरली गलत होती हैं। एंड एक लॉजिक और बताता हूँ, जब सेम स्टेटमेंट में यूपीएससी सेम चीज़ को बार बार रिपीट करे, जैसे एल टी इज कॉमनली मार्केटेड सॉरी स्टैमरिंग का इशू है, सो यू प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होगी, और ऐसे ही वोल्ट इज कॉमनली मार्केटेड, दोनों में सेम चीज़ है, तो भाई ये स्टेटमेंट कभी ठीक नहीं होती। स्टेटमेंट वन इज ऑल्सो रॉन्ग, यू गेटिंग इट? क्लियर करके बताता हूँ, जब कोई स्टेटमेंट यूपीएससी दे रहा है और सेम वर्डिंग दो बार स्टेटमेंट में यूज हो रही है, देन दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसको लिख लेना, अभी 2-3 क्वेश्चन और आएंगे, मैं बताऊंगा उसमें। तो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग एंड आवर आंसर विल बी डी। बट अगर आपने टेस्ट के अंदर आके आपने सिर्फ इसका आंसर ए मारा है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि हमें 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, वी नीड ओनली 60% एक्यूरेसी। बेस्ड ऑन दिस ऑल्सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट भले से आंसर इसका डी हो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट। मैंने आपको बोला था वल्नरेबल सेक्शन लाइक वुमन, चाइल्ड, SC/ST, PWD और अपना ओल्ड एज, इनके बारे में यूपीएससी जनरली सही स्टेटमेंट बनाता है, इनके लिए गलत स्टेटमेंट नहीं बनाता। ठीक है, सो वुमन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स, जिनके महिलाओं के 2 बच्चे हैं उनको एंटाइटलमेंट्स कम मिलेंगे। चलो भाई पॉसिबल है। एंटरप्राइजेस विद क्रश मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रश विजिट डेली। भाई पहली बात तो जो है, जो जिन एंटरप्राइज में क्रश है तो उनमें जो मदर को है भाई मिनिमम 6 विजिट अलाउ करना है। देख भाई प्राइवेट सेक्टर तो ये सब चीज़ें तो वैसे ही अलाउ नहीं करता। पहली बात तो वो तो रिलक्टेंट होता है कि भाई मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी, वो भी पेड होगी, एंड चलो हम क्रश फैसिलिटी दे भी रहे हैं तो उसमें अब 6 टाइम मदर को अलाउ करो। तो भाई अब यहाँ तो कुछ लॉजिक बन नहीं रहा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, ये प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। So we have to be aware about the mindset of the private sector when it comes to employees। अभी जैसे ना न्यूज में आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने वो अपना जो पेड लीव्स है फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल उसे रिजेक्ट कर दिया, एंड चीफ जस्टिस ने लॉजिक दिया था। आई गेस चीफ जस्टिस ने उस बेंच को हेड किया था, एंड ही गिव द लॉजिक, भाई अगर हमने ये अलाउ कर दिया तो प्राइवेट सेक्टर विल नॉट एम्प्लॉय द वुमन वर्कफोर्स। जो वुमन जो महिलाएं हैं उनको जो है वर्कफोर्स है उसको प्राइवेट सेक्टर हायर नहीं करेगा, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर वर्क्स ऑन वन प्रिंसिपल प्रॉफिट। उसके लिए प्रॉफिट पहले है, वेलफेयर बाद में है। तो भाई अगर महीने में 2 छुट्टी उसे पेड लीव देनी पड़ रही तो वाई वुड इट एम्प्लॉय वुमन। एंड वुमन को वैसे भी एक नेगेटिव सेंस में देखा जाता है कि वुमन आर लेस प्रोडक्टिव। ये हमारा पैट्रियार्कल बायस है अगेंस्ट वुमन कि वुमन आर लेस प्रोडक्टिव। अगर ये हमारा बायस बना हुआ है दिमाग में, एंड उसके अलावा उसके बाद हमें जो 2 पेड लीव देनी पड़ी, तो उसके बेसिस पे तो भाई प्राइवेट कंपनी को तो लॉस होगा। प्राइवेट कंपनी का अगर माइंडसेट ही ऐसा है तो भाई वो 6 विजिट दिन में क्यों अलाउ करेगी? मिनिमम बोल रहा है भाई, मिनिमम। सो स्टेटमेंट 2 becomes wrong and we will reach to our answer 76 आंसर है अपना C। Yes, I checked the answer as well, the answer भी है C। चलो फर्स्ट पढ़ते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड आर एंटाइटल्ड फॉर 3 month प्री डिलीवरी, 3 month पोस्ट डिलीवरी पेड लीव। तो भाई वही लॉजिक जो मैंने इसमें बताया है, सेम लॉजिक अप्लाइज टू दिस। 6 महीना पेड लीव रहेगी भाई, और कौन सा प्राइवेट सेक्टर देगा? तो क्वेश्चन द क्वेश्चन, समटाइम्स क्वेश्चन द क्वेश्चन। Which one of the following is not a sub-index of the World Bank ease of doing business index? Not a sub-index, ठीक है। सब-इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। भाई ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। इन क्वेश्चंस में अननेसेसरीली रिस्क नहीं लेना। अब जैसे मैंने वो बताया था लेंथ वाला ओड वन एंड आउट, कि भाई उसके बेसिस पे क्या पता बी आंसर हो जाए इसका, बट नहीं किसी मतलब ऐसा ना कि किसी के मन में आए कि भाई मैं इसमें ट्राई करता हूँ कि भाई ए बड़ा है, डी बड़ा है, सी बड़ा है और बी छोटा है, मैं उस पर आंसर मारूँ। नहीं, वहाँ तीनों कंडीशंस अलग अलग थी, वहाँ पर पूरी लाइन जा रही थी।
ठीक है, यहाँ पर इतने में भी खत्म हो रहा है. सो यू कैन नॉट टेक द रिस्क. सो सच क्वेश्चंस आर अवॉइडेबल. एंड इसका आंसर टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता. मैं इसका आंसर स्किप करता जस्ट बिकॉज आई एम सीइंग इट फ्रॉम द आंसर की. इसका आंसर है ए. ठीक है, इस क्वेश्चन को ये है स्किपेबल क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी. So in India, extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following. EPR जो है इंट्रोड्यूस किया है और वो किस एक्ट के अंदर किस रूल्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया है. जो द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेटरी. भाई एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम वेस्ट के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, वेस्ट के कंटेक्स्ट में, स्पेशली ई वेस्ट के कंटेक्स्ट में. तो डी तो कैन नॉट बी द आंसर. The e-waste management handling rules 2011 पॉसिबल है. The reduced plastic manufacturing and usage rule, I told you कि भाई वेस्ट ई वेस्ट के स्पेसिफिकली हम पढ़ते हैं और इसमें वेस्ट की कोई बात कर नहीं रहा, रिसाइकल्ड प्लास्टिक के कुछ बारे में बात कर रहे हैं. चलो वो भी थोड़ा भाई वेस्ट के साथ एसोसिएशन किया जा सकता है. एंड ए इसकी बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स. तो ठीक है, ये भी नहीं है इसका आंसर. आंसर इसका है सी. एंड इस टाइप की भाई अगर थोड़ा पढ़ा हुआ है तो ठीक है, वरना देख लेना थोड़ा कि भाई न्यूज़ में रहता है ये ईपीआर क्या होता है. एंड ईपीआर हम जनरली ई वेस्ट के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं और ई वेस्ट के कंटेक्स्ट में अगर हमारे पास रूल्स हैं तो जनरली आंसर विल बी दैट ओनली. 79. The economic cost of food rents to the Food Corporation of India is minimum support price and bonus if any paid to farmer plus. भाई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक्वायर करता है, प्रोक्योर करता है फार्मर से जो रेंज है, फूड रेंज है, तो उसका उसका कॉस्ट होगा. एक कॉस्ट तो वो है जो फार्मर्स को एमएसपी दिया जाता है, ठीक है, और जो उनको बोनस देते हैं. उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा हो सकता है भाई या तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकता है या इंटरेस्ट हो सकता है. प्रोक्योरमेंटल इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड चार्ज फॉर प्रोडाउंस. तो अब दिमाग की बत्ती जली. प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स या तो आंसर हो रहा सी में से या आंसर हो रहा डी में से. अब क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा बेटर है कि प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या चार्ज फॉर प्रोडाउन? अब इनमें से ब्रॉड कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है या चार्ज फॉर प्रोडाउन है? भाई डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले स्टोरेज करना होगा. स्टोरेज के लिए क्या चाहिए? गोडाउन चाहिए. तो वी कैन अज्यूम कि भाई इसकी कॉस्ट क्या पता इसमें इंक्लूड हो गोडाउन की कॉस्ट. तो ब्रॉड कौन सा है? सी इज ब्रॉड एंड डी इज अ नैरो. एंड बेस्ड ऑन द लॉजिक आई विल मार्क सी. सो माय आंसर विल बी सी. Question number 80. In the context of any country, which one of the following would be considered as part of its social capital? तो भाई सोशल कैपिटल है क्या होती है? आप जिसे कंसेप्ट पता है उसे पता है, जिसे नहीं पता उसे नहीं पता. सो चलो देखते हैं. द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, एग्जैक्टली यही डेफिनेशन होती है. सो इट इज द आंसर. द साइज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप. साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप. भाई इसका कोई कैपिटल से एसोसिएशन नहीं आ रहा. साइज ऑफ कैपिटल से तो वर्कफोर्स की डेफिनेशन में जा रहा है. मतलब डेफिनेशन वर्कफोर्स की नहीं है बट समथिंग एसोसिएटेड विद दैट. द स्टॉक ऑफ द बिल्डिंग्स, ये तो भाई अपना फिक्स्ड कैपिटल होता है. द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, ये तो लिटरेसी रेशो होता है अपना. सो इट इज समथिंग डी. ओड वन आउट में भी दे सकते हो आप कि उसके बेसिस पे डी है. अभी थोड़ा नॉलेज वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो पढ़ा है. एंड सोशल, भाई सोशल सोसाइटी. सोशल मतलब सोसाइटी. सोसाइटी में क्या कैपिटल हो सकती है? सोसाइटी के कंटेक्स्ट में जब आप सोशल इश्यूज GS1 में या सोशल इश्यूज GS3 GS2 में जब पढ़ते हो तो भाई सोसाइटी में सोशल कैपिटल क्या हो सकती है? ट्रस्ट हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकते हैं. रिलेशनशिप वो नहीं GFBF वाला रिलेशनशिप नहीं, सोशल रिलेशनशिप हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में ट्रांसपेरेंसी हो सकती है. तो वही सब चीज़ें होती है ना भाई सोसाइटी में, तो वही मैटर करते हैं ना. ऑल दिस थिंग्स बाइंड द सोसाइटी ना. जो कॉमन फैब्रिक है वो यही है ना. ट्रस्ट है, रिलेशनशिप है, अकाउंटेबिलिटी है, हार्मनी है, तो ब्रदरहुड है. तो उस बेसिस पे भी वी विल रीच टू आवर आंसर, दैट इज डी. Question number 81. With reference to the Constitution of India, consider the following statements. An amendment to the Constitution of India cannot be called into the question by the Supreme Court. भाई साहब 99th अमेंडमेंट को क्यों फिर डिक्लेयर किया, नल एंड वॉइड किया? सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन कर ही नहीं सकते भाई अमेंडमेंट्स को. जुडिशियल रिव्यू किस लिए है? BST किस लिए है? पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के बीच में फ्रिक्शन क्यों है? 42 अमेंडमेंट के इतने सारे प्रोविजन को नल एंड वॉइड क्यों किया? तो यहाँ उठता है सवाल. सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अब ये नहीं है कि भाई सेकंड स्टेटमेंट गलत कर दी और फर्स्ट को पढ़ा ही नहीं और सीधा आंसर मार दिया ए. नहीं, ऐसे काम नहीं करने. नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड. भाई एक सेंटर ने लॉ पास किया है, ठीक है, आप उसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर ही नहीं सकते. भाई क्या नॉनसेंसिकल बातें हैं. जिसने भी बेसिक चीज पढ़ी है उसको पता हो रहा है. इसका आंसर है डी, नॉलेज. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 82. In terms of PPP, India is the 6th largest economy. भाई ये तो हमारी प्राउड की बात है कि भाई we have something like good numbers when it comes to global comparison. India is the 3rd largest after USA, China. So USA फर्स्ट पे है, China सेकंड पे है.
So based on this, second statement is wrong. PPP exchange rates are calculated by comparing the price of the same basket of goods and services in different countries. हाँ ठीक है, यही डेफिनेशन है पीपीपी की. एंड इन केस यू आर, वैसे तो भाई ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, आपको नॉलेज पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन से, बट इन केस यू आर नॉट अवेयर अबाउट पीपीपी, यू कैन टेक द रिस्क ऑफ मार्किंग ए, एंड ए इज आवर आंसर. आई होप यू आर गेटिंग दिस. आज वाले वीडियो में 2-3 चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं, एंड कीप दैट इन योर माइंड, वो इंपॉर्टेंट है. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 83. थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, बट आज इसे निपटाएंगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट ईदर विद 2020 या 2025. विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 years, कंसिडर द फॉलोइंग. चारों हैं भाई, चारों तो मैं ठीक नहीं मानूंगा. क्यों? चारों फैक्चुअल चीजें मिलेंगी, चारों फैक्चुअल चीजें मिलेगी. भाई यहाँ राइस की जगह क्या पता व्हीट हो, शुगर केन हो, कुछ भी हो, फैक्चुअल चीज है ना. तो भाई डी तो नहीं हो रहा इसका आंसर 101% श्योरिटी के साथ. तो चलो 83 है, फोर्थ से पढ़ते हैं. एरिया अंडर शुगर केन हैज स्टेडीली डिक्रीज्ड. शुगर केन कल्टीवेशन में स्टेडीली डिक्रीज हुआ है. एंड आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्टरी वीडियोस, जब मैंने वो 2 वीडियोस डाली थी कि जब भी ऐसे यूपीएससी वर्ड यूज करे स्टेडीली इंक्रीज और डिक्रीज, दैट स्टेटमेंट्स आर जनरली इनकरेक्ट. ठीक है, तो स्टेटमेंट 4 बिकम्स रॉन्ग एंड आई विल मार्क आंसर इसका ए. चलो भलो, बट अभी डायरेक्टली आंसर नहीं मार्क करना है, आई विल रीड अदर स्टेटमेंट्स एज वेल, बट डी तो इसका आंसर नहीं होगा. सो फोर्थ इज इन डाउट. एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन. चलो भाई नहीं पता. एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स. अब देखो भाई, सेकंड और थर्ड सेम थीम है कि भाई क्रॉप ए है, उसका बी क्रॉप से कल्टीवेशन ज्यादा है. सिमिलरली क्रॉप सी है, उसका कल्टीवेशन एरिया डी से ज्यादा है. सो थीम तो सेम है, तो 2 और 3 कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर. तो 2 and 3 तो नहीं होंगे, या तो आंसर होगा 1 या 3, या आंसर होगा 2 and 4. एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन फैक्ट कि भाई इंडिया में राइस कल्टीवेशन वन ऑफ द हाईएस्ट है, एंड हाईएस्ट ही है बेसिकली. सो बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड फोर्थ के बेसिस पे भी आल्सो वी विल डिड्यूस आवर आंसर एज आंसर ऑप्शन नंबर ए. कोई तुक्केबाजी नहीं है, प्योरली लॉजिक है, प्योरली एप्टीट्यूड है, बेस्ड ऑन PYQs. सो 83 का आंसर हो जाएगा अपना ए. Question number 84. Among the following agricultural commodities imported by India, which one of the following accounts for the highest import in terms of value in the last 5 years? भाई स्पाइसेस है. स्पाइसेस को तो हम जनरली इंडिया को एक्सपोर्टर माना जाता है, इसलिए तो यूरोपियन पावर्स इंडिया में आए थे. तो ये तो नहीं होगा. फ्रेश फ्रूट्स है भाई, हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे हैं, तो हम लार्जेस्ट हम इंपोर्ट जरूर करते होंगे फ्रूट्स का, ऐसा नहीं कि फ्रूट्स को इंपोर्ट नहीं करते, बट लार्जेस्ट तो नहीं होंगे बाई किसी एंगल. तो बी इज रॉन्ग. अब हमें पता है यदि यार हम पल्सेस इंपोर्ट करते हैं और वेजिटेबल ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं, दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अवर एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स. तो ये तो हमारे इंपोर्ट्स हैं मैक्सिमम जो हम करते हैं. अब हमें इसमें से डिटरमाइन करना है कि सी हो रहा या डी हो रहा. एंड वी नो कि भाई पल्सेस तो हम इंडिया में उड़ाते हैं, पल्सेस तो हम इजीली उड़ा लेते हैं, भले हमारी कंजम्पशन डिमांड है वो फुलफिल नहीं होती, सो दैट वी हैव टू इंपोर्ट. बट वेजिटेबल ऑयल इज समथिंग विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर ऑलमोस्ट अ मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंपोर्ट्स. तो वेजिटेबल ऑयल्स के लिए हम मेजरली फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड रहते हैं, चाहे वो पामोलिन ऑयल हो, सोयाबीन ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो. तो वट एवर इट इज, वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज, द अदर कंट्री फॉरेन कंट्रीज. सो बेस्ड ऑन द लॉजिक ऑल्सो वी विल आंसर. इसमें नॉलेज भी चाहिए, इसमें लॉजिक भी चाहिए. सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 85. In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? And I told you in such questions apply the examples. बेसिक से बेसिक एग्जाम्पल भी लगाओगे तो उस बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे. सो लिबर्टी का मतलब क्या है? एंड आई टोल्ड यू ऑप्शन शुरू से नहीं पढ़ना, ऑप्शन लास्ट से ऊपर पढ़ना है, बिकॉज इट इज अ टेंडेंसी ऑफ यूपीएससी एग्जामिनर कि शुरू में जो है ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स या ऑप्शंस दे दें जो इंट्यूटिवली हमें सही लगे, बट एक्चुअली इन क्वेश्चंस में, इन फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस में ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो जनरली लास्ट में दिया होता है. So based on this also, so we will read our options from last. Opportunity to develop oneself fully, चलो हो सकता है. Opportunity to do whatever one likes, ये भी हो सकता है. Absence of restraint, भाई restraint ही नहीं है, कुछ भी restraint नहीं है. मैं जाकर किसी का मर्डर कर दूं तो क्या वो लिबर्टी होगी? नहीं. One's liberty shall not compromise others' liberty. Shall not compromise with अदर्स लिबर्टी. भाई मेरी लिबर्टी दूसरे की लिबर्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है, दूसरे की लिबर्टी मेरे कारण कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. तो फर्स्ट तो नहीं हो रहा. प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, भाई वो ठीक है टायरनी है पॉलिटिकल रूलर्स की, बट वो बेस्ट डेफिनेशन में नहीं आता कि भाई वो उसके लिए चीज़ें ठीक है. चलो आर्टिकल 32 है हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो ठीक है, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ लिबर्टी का डेफिनेशन ही एग्जैक्ट नहीं है. तो स्टेटमेंट 1 इज समथिंग. अब देख मैंने बोला था ना यूपीएससी ऐसे ही ट्रैप में डालते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स इनिशियली डाल दे रहा यूपीएससी कि इंट्यूटिवली हमें ठीक लगे, सो दैट वी डोंट रीड अदर ऑप्शंस एंड वी जस्ट मार्क ए एज करेक्ट और मूव ऑन करते हैं. बट नहीं, ए इज नॉट द आंसर, बिकॉज
इट इज नॉट द बेस्ट डेफिनेशन स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑप्शन डी। और दूसरा लॉजिक देखते हैं, अपॉर्चुनिटी टू डू अपॉर्चुनिटी, सो सेम थीम, या तो आंसर सी होगा या डी होगा। आप वही अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, इसका भी होल्ड पे डाला हमने, तो सी हो रहा है या डी हो रहा है भाई, वट एवर वन लाइक्स। अब मेरा मन क्या है, मैं भाई मर्डर कर दूं किसी का, मेरा मन किया कि भाई मैं ऑपोजिशन लीडर्स को उड़ा दूं, वो पार्लियामेंट डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा मेरा मन करने लगे, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। अब मेरा मन करे कि भाई कोई इंडिविजुअली इंसान मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उस पर गोली मार दूं को, भाई मेरा मन करेगा तो उसके बेसिस में मैं काम नहीं कर सकता ना। सो स्टेटमेंट सी बिकम्स रॉन्ग, स्टेटमेंट सी सही नहीं है। सो वी हैव टू चूज बिटवीन, या तो डी होगा या सी होगा, एंड लॉजिक के बेसिस पे सी या डी में से आंसर होगा। सो सी इज नॉट द आंसर एंड डी इज समथिंग, एंड अब ए और डी में से चूज करना है तो आई विल गो विद डी। एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ, मतलब लॉजिक नहीं है ये, लास्ट में उठाने, जैसे लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट बोलते हैं ना इको में, तो ऐसे ही है। अगर आपको कंफ्यूज हो सी या डी में से, ए या डी में से, गो विद डी। ये एक लास्ट में रिस्क लेने वाले क्वेश्चन है। इफ यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस और आपको रिस्क लेना है कि भाई सी और डी में से या ए और डी में से कौन सा लेना चाहिए, तो आंसर 70% टाइम्स डी होगा, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ PYQs ओनली। चलो थोड़ा फास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट RBI टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। भाई इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, उसे रोकना है, तो क्या ऐसा नहीं मेजर है जो RBI या गवर्नमेंट नहीं ले रहा। भाई इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में जनरली एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें नोट को काट दो। अब क्या बचा है कि भाई कौन कौन से मेजर्स हैं जो RBI गवर्नमेंट लेंगे इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए। कि भाई डेप्रिसिएशन कब रुकेगा, जब हमारा डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा और डॉलर की डिमांड कम होगी या डॉलर का एक्सपेंडिचर कम होगा। सो फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, भाई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी डाल दी हमने, इंडियन रुपीज डाल दिया, ठीक है। इंडियन रुपीज की डिमांड ही नहीं थी इतनी, लेकिन स्टिल हमने इंडियन रुपी बहुत ज़्यादा मार्केट में डाल दिया। पहले 100 रुपये थे, 100 रुपये की डिमांड नहीं थी, अभी हमने 100 रुपये और डाल दिए, 200 रुपये किए। जब सप्लाई बढ़ गई इंडियन रुपी की तो क्या हो रहा, और ज़्यादा इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो रहा। क्यों, पहले ही डिमांड नहीं थी, अब और तुमने सप्लाई कर दी, अब सप्लाई डिमांड मिसमैच और फर्दर हो गया, अब ज़्यादा सप्लाई और ज़्यादा हो रही है, डिमांड पहले से ही नहीं है तो डेप्रिशिएट हो रहा। सो डी इज करेक्ट भाई, कि हाँ कि डी इज समथिंग बेस्ड विच द गवर्नमेंट विल कंसिडर एज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन टू स्टॉप द डेप्रिसिएशन, क्योंकि इससे डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है। इज इन कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, भाई कमर्शियल बोरिंग बढ़ा दो, अपनी इजी कर दो कंडीशन। पहले रिस्ट्रिक्शंस थे, और रिस्ट्रिक्शंस हटा दो कि भाई तुम फॉरेन से ले लो। जब हम फॉरेन से लैंडिंग कर लेंगे, बोरिंग कर लेंगे, तो डॉलर आएगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो इंडिया का जो रुपी है वो डेप्रिशिएट कम हो रहा। सो ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। एनकरेजिंग इंडियन बोरर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, तब जब फॉरेन मार्केट में रुपीज की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ गई है तो ऑब्वियसली उसका एप्रिसिएशन होगा, तो उससे डेप्रिसिएशन रुक जाएगा। टर्मिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डॉलर का इनफ्लो होगा, तो उससे भी एप्रिसिएशन होगा किसका, रुपी का, और डेप्रिसिएशन जो है कम हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस हमने ये नोट काट दिया था, नोट काटा कि भाई कौन कौन से मेजर्स गवर्नमेंट ले रहा है डेप्रिसिएशन रोकने के लिए। तो यहाँ ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, डी इज समथिंग जिसके कारण इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होगा, एंड आंसर विल बी डी। तो ऐसे अप्लाई करना है नॉलेज को और अपने जो आपकी लर्निंग्स है। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंट डायरेक्टिव रिलेटेड टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा एंड पॉपुलरली नोन एज डेटा डिटेक्ट कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स दैट, ठीक है भाई, डेटा डिटेक्ट है कुछ ऐसा होगा। दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू द केयर ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर। भाई इन RBI का इनिशिएटिव है स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा डिटेक्टेड। अब बैंक्स को अभी तो हो रहा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो कमांड है। अब क्या मतलब केयर जो है बैठ के सबका ऑडिट करे डेटा, सबका, प्राइवेट बैंक्स का, पब्लिक बैंक्स का, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नहीं है ना भाई पॉसिबल। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है भाई, कैट के पास बहुत सारे काम है, CAG के पास बहुत सारे काम है, तो वो उनको तो नहीं टाइम मिलेगा ना इतना सब डेटा एनालाइज करने का, इतना सारा डेटा रिव्यू करने का, तो कोई और भी कर सकता है, प्राइवेट कर सकता है इसको। तो वाई कैट, तो क्वेश्चन वाई कैट। नेक्स्ट पे आते हैं, दे शैल इंश्योर दैट द सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कि भाई सिर्फ जो वो डेटा का मैनेजमेंट है वो पब्लिक सेक्टर के पास ही होगा। रिमाइंड करो भाई ये चीज़, मतलब दिमाग में रखना सी चीज़ भाई, ठीक है पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट है, बट सब कुछ पब्लिक सेक्टर ही करेगा तो एफिशिएंसी कहाँ से आएगी। सो दिस लॉजिक, बाय दिस लॉजिक स्टेटमेंट आल्सो बिकम्स रॉन्ग एंड आवर आंसर विल बी ए। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू read from the last statement. That's why I told you read from the last statement. And one more thing, that's why I told you read from the last statement. Question number 88. Which of the following adopted a law on data protection and privacy for its citizen known as General Data Protection Regulation in April 2016?
भाई ऐसे क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं पता बट EU अगर ऑप्शन में दिया हुआ है मार दो। 2025 या 24 में क्वेश्चन था, मुझे नहीं आता था, EU ऑप्शन में दिया हुआ था, मैंने मार दिया। क्यों? इट इज अ फेवरेट थिंग। जस्ट लाइक विजयनगर, जस्ट लाइक KDR, कृष्ण देवराय, जस्ट लाइक अशोक, जस्ट लाइक गांधी जी, इट इज अ फेवरेट थिंग ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी को यूरोपियन यूनियन से अलग ही प्यार है भाई। EU ऑप्शन में हो रहा तो वो ठीक हो रहा। बस इस बार ना एक और क्वेश्चन है, ओ ब्यूटीफुल बिल करके नाम जो है अपना वो USA वाला है, बस उसमें थोड़ा सस्पिशियस रहना, थोड़ा केयरफुल रहना। अगर यूपीएससी वो क्वेश्चन पूछता है, अगर उसमें EU ऑप्शन हो रहा तो भाई EU उसमें मत मारना। वैसे वो बिल ब्यूटीफुल वाले का USA ऑप्शन है। मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। इन केस पूछ लेता है तो उसमें यूरोपियन यूनियन ऑप्शन नहीं डालेगा, यूरोपियन यूनियन ऑप्शन नहीं डालेगा। बट ठीक है भाई, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है इन सब चीज़ों में, डाल भी दिया तो उस सेंस में भाई ठीक है, केयरफुल रहना कि उसमें EU नहीं है, US आंसर है। बट जनरली 99% केसेस में कोई चीज़ पूछी है यूपीएससी ने और वो आपने नहीं पढ़ी तो, और उसमें EU दिया हुआ है, इवन की पढ़ी भी हुई है तो पढ़ने के बाद तो आसान हो जाता है, बट इन केस नहीं पढ़ा उसके बारे में और उसमें EU ऑप्शन है तो भाई EU पे मार देना आप मुझ के। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, इसमें तो EU दे सकता था, यूपीएससी नहीं दिया, इट वॉज नहीं है उसका ऑप्शन, क्योंकि प्यार है यूपीएससी को। जब EU से प्यार है तो वाई वुड यूपीएससी मेक इट इनकरेक्ट, तो EU दिया ही नहीं यूपीएससी ने इसमें। रिसेंटली इंडिया साइंड अ डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड। न्यूक्लियर फील्ड के कंटेक्स्ट में यूपीएससी इंडिया ने ऐसे डील साइन की है। भाई न्यूक्लियर फील्ड में अब लॉजिक बताओ, आपका लॉजिक क्या कहता है? जापान के साथ करेगा वो न्यूक्लियर फील्ड में से कॉर्पोरेशन? जापान इंडिया के साथ करेगा? नहीं ना यार, जापान तो खुद डरा रहता है न्यूक्लियर के कंटेक्स्ट में। रशिया इज अ पोटेंशियल आंसर, रशिया हो सकता है। यूके में नहीं करता भाई ये सब चीज़ें। यूके तो कभी सुना कि भाई वो न्यूक्लियर कंटेक्स्ट में इंडिया के साथ डील कर रहा है? नहीं। तो इसका आंसर होता है तो बी हो रहा या डी हो रहा, क्योंकि यूएसए को अब चल रहती है, क्योंकि इंडिया इज अ इकोनॉमी, इंडिया इज अ मार्केट फॉर यूएस प्रोडक्ट्स। यूएसए को अपना प्रोडक्ट बेचना है, यूएसए को रशिया से इंडिया को आइसोलेट करना है, सॉरी इंडिया को रशिया से आइसोलेट करना है। तो ये तो आंसर बी हो रहा या डी हो रहा। एंड इफ यू हैव टू चूज बिटवीन बी एंड डी, आई विल चूज डी। सो बेस्ड ऑन माई लॉजिक माई आंसर विल बी डी, एंड 89 का आंसर है डी। तो भाई लास्ट में दो ऑप्शंस बचे हैं ना, AD, BD, CD। आपको नहीं पता, यू आर नॉट श्योर, गो विद डी। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग? इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। अब भाई ये तो हम पढ़ते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो बढ़ गया तो बैंक्स की लैंडिंग एबिलिटी कम हो जाती है। सिमिलरली SLR बढ़ा दिया तो बैंकिंग की जो लैंडिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो उससे मल्टीप्लायर तो नहीं बढ़ेगा, जब लैंडिंग एबिलिटी ही रेस्ट्रिक्ट हो रही तो मल्टीप्लायर तो नहीं बढ़ेगा। अब ये भी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है, ये भी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है, ए तो नहीं हो रहा, सी नहीं हो रहा, या तो बी हो रहा या डी हो रहा। अब क्या बोल रहा है कि इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। भाई पहले 100 करोड़ पॉपुलेशन थी, अब 125 करोड़ पॉपुलेशन होनी है, तो क्या उससे मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा? मल्टीप्लायर कब बढ़ेगा? जब पीपल अपनी सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट करेंगे। विदाउट डिपॉजिट तो जो बैंक है वो लैंडिंग नहीं कर सकता। अब ये मत बोलना भाई मैंने मल्टीप्लायर नहीं पढ़ा, अगर मल्टीप्लायर नहीं पढ़ा तो भाई छोड़ दो पेपर, अगले अटेम्प्ट में तैयारी करना। दिस इज समथिंग वेरी बेसिक, NCERT में दिया हुआ है यार, ऐसे टॉपिक्स नहीं मिस कर सकते। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी देन यू मस्ट क्वेश्चन योर प्रिपरेशन लेवल। तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, स्किप द पेपर, स्किप दिस अटेम्प्ट, प्रिपेयर वेल। PYQs को एनालाइज करो, PYQs की थीम देखो, टॉपिक्स पढ़ो, उसके बाद अटेम्प्ट करना। देर इज नो पॉइंट इन वेस्ट इन द टाइम, देर इज नो पॉइंट इन वेस्ट इन द अटेम्प्ट्स। तो आप जनरल वाले हो तो भाई वैसे ही लिमिटेड अटेम्प्ट है, तो उस बेसिस पे जस्ट डोंट वेस्ट द अटेम्प्ट इफ यू आर नॉट श्योर। सो इसका आंसर है बी। अब वो लॉजिक इसमें नहीं लगा कि भाई बी या डी में से है, बट इसमें से मैं बोलूँगा कि भाई वैसे तो 100% एप्लीकेशन नहीं, वैसे तो 100% एप्लीकेशन नहीं है, तो इसमें COD, इसमें ना ये है और ये है। BOD वाले को इग्नोर करना, BOD वाला इग्नोर करना। अगर AOD और COD में से चूज करना है तो डी को चूज करना। COD वाले का भी 3 क्वेश्चन हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 91। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरटेनमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है भाई, टेक्नोलॉजी है, AR VR ये सब दिया हुआ है, मस्ट बी की कंपेरिजन तो होगा, तो चारों तो नहीं ठीक होंगे, चारों वाला ऑप्शन भी नहीं है। चलो, VR क्लोजेज द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोजेज एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंटरमिशन एक्सपीरियंस। भाई VR जो है वर्ल्ड को क्लोज कर देता है और इंडिविजुअल को एक कंप्लीटली इमर्शन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। चलो भाई पॉसिबल है। AR अलाउज इंडिविजुअल्स टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इंप्रूव द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा, ये भी चलो ठीक हो सकता है। In virtual reality, image generated from a computer are projected into real-life objects or surroundings. In AR, a simulated environment is created and the physical world is completely shut out.
भाई फिजिकल कंप्लीट। अब स्टेटमेंट 1 को पढ़ो, स्टेटमेंट डी को पढ़ो। ये बोल रहा है कि भाई एआर में फिजिकल वर्ल्ड शट आउट हो जाता है, वीआर बोल रहा है कि भाई इसमें शट आउट हो जाता है। यानी कि स्टेटमेंट या तो 1 ठीक है या स्टेटमेंट नंबर 4 ठीक है। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जहाँ पर 1 और 4 सेम हो साथ में। चलो भाई ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन पढ़ो। अगर आपने थोड़ा सा भी एआर वीआर थोड़ा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो यू मस्ट हैव बीन अवेयर कि भाई वीआर में हम वो रोडल टाइप मशीन डालते हैं जो वर्चुअल रियलिटी की है। जैसे पबजी गेम है, पबजी भी अपने आप में वर्चुअल रियलिटी गेम है, ऑगमेंटेड रियलिटी नहीं है। सो दोज हु लाइक पबजी, उन्हें ये चीज़ पता होगी कि भाई वीआर में ना हम एक एक्सटर्नल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं, नॉट आवर पर्सनल वर्ल्ड। जो हमारा इंडिविजुअल जो फिजिकल वर्ल्ड है हम उसे नहीं एक्सपीरियंस करते, बल्कि हम एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और उसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो उसके बेसिस पे स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी। And I told you, whenever UPSC gives definition like questions, तो there is a tendency to exchange the concept. तो UPSC ने क्या किया, AR को VR में डाल दिया, VR को AR में डाल दिया. So based on this, first and second तो ठीक नहीं हो सकते. And I told you, first और fourth कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. अगर first गलत है तो fourth must be correct. So answer will be B. Let's come to question number 92. The word Denisovan is sometimes mentioned in news in reference to Denisovan है. अब भाई पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। चलो फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन। ज्योग्राफिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भाई ऐसा तो कुछ हमने चलो नहीं पढ़ा है, बल्कि पीरियड के कंटेक्स्ट में तो ऐसा नहीं पढ़ा है, तो पॉसिबल है कि भाई शायद ना हो। अ केव सिस्टम फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड अर्ली ह्यूमन स्पीशीज। भाई अब कुछ लोग बोलेंगे ना इसमें ना, जैसे ये वर्ड है ना, अब नहीं पता तो इसमें ए मार दो, क्या पता ए आंसर हो। और इस क्वेश्चन का आंसर शायद वो नहीं है, बट मैं भी चेक करूँगा तो बताऊंगा। तो बट भाई वो ऐसा लॉजिक में मत जाना, अननेसेसरी लॉजिक है। इफ़ यू नो यू नो, यू डोंट नो यू डोंट नो, स्किप कर दो। और जो मैंने बताया था ए मारने वाला, वो मैंने कहा था कि भाई वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वाला भी नहीं बोला था मैंने, डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला बोला था। एंड आई विल स्किप दिस क्वेश्चन बेसिकली, वैसे इसका आंसर भी है। सो सच क्वेश्चन आर स्किपेबल। सो 10 से 15 हो भी जाते हैं ना स्किपेबल, कोई बड़ी बात नहीं है। वी हैव टू टारगेट 85 में से 60 लेके आने भाई, ठीक है। तो चलो, विद रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। चलो लास्ट से पढ़ना क्या, चलो इसी से पढ़ लेते हैं। फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है भाई, जीन मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है, पॉसिबल है। जीएम की बात कर रहा है ना, कि भाई बैक्टीरिया से हमने कुछ जीन उठा लिया और उसके थ्रू हमने इंसुलिन बनाया, या फिर अभी mRNA वैक्सीन बनाई, तो इट इज़ पॉसिबल। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन तो ठीक है। पीसेज ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लैबोरेटरीज, ये भी ठीक है कि भाई वायरस नहीं बना सकते बट डीएनए तो बना ही सकते हैं ना, तो ये भी ठीक है। अ पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड द लिविंग, भाई इसी को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर जो है अपना, ये पॉसिबल है, ठीक है। सेल टेकन आउट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन इन अ लेबोरेटरी पेट्री डिशेस। सेल डिवीजन को जो है लैब के अंदर अपना मतलब उसको डिवाइड करना है, लैब के अंदर डिवाइड करना है। तो अब ऐसा है कि ठीक है, शायद मेरे से भी गलती हुई पढ़ने में, चारों तो ठीक नहीं हो सकते क्योंकि नोट करेक्ट पूछा है। ओके 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 ओके। फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अरे नहीं नहीं यार, ये गलत है, ये जेनेटिकल मॉडिफिकेशन नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, इसका आंसर ए है। देखो ये अपना क्या बात कर रहा है, सेल टेकन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन इन लेबोरेटरी पेट्री डिशेस। भाई बात कर रहा है माइटोसिस की बात कर रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि भाई माइटोसिस तो कर सकते हैं या डिवीजन जो है कर सकते हैं। ऑप्शन सी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। पीसेज ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज, यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल। अभी बोल रहा है कि फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम डिफरेंट, तो दिस इज समथिंग। क्योंकि ये mRNA टेक्नोलॉजी बाद में आई है भाई, ये 2020 के आसपास आई है, ये तब नहीं पॉसिबल था क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है वो, तो उस टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो इसके ऊपर रिसर्च उस टाइम पे चल रही थी बट ये हुआ नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अ डिजिटल सिग्नेचर इज an electronic method of signing an electronic document and ensuring that the original content is unchanged। ठीक है भाई, पॉसिबल है। used to serve as a proof of identity of an individual to access information or server on internet। ठीक है भाई, an electronic record that identifies that certifying authority issuing it। अब ऐसा है, अब ऐसा क्वेश्चन में क्या करोगे भाई, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, इन केस अगर नहीं पढ़ा तो गो विद ऑल ऑफ द अबव। भाई इस क्वेश्चन में ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक तो मैं बता दूंगा कि भाई इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर कुछ और है, तो उसके बेसिस पे कुछ हो रहा। अब जिसने नहीं पढ़ा उसके बेसिस पे तो ठीक है ना भाई, अननेसेसरी अपने लॉजिक क्यों चेंज करने हैं, अननेसेसरी अपने लॉजिक
क्यों चेंज करने हैं, तो आई वुड मार्क डी इसमें। बट ठीक है चलो, बताने वाले कुछ भी बताएंगे, बट एग्जाम लाइक कंडीशन में इट इज नॉट ईजी टू डिफरेंशिएट इन ईच एंड एवरी स्टेटमेंट। अगर हर चीज में लॉजिक बताने लगे सो यू विल डेवलप द सस्पिशन, एंड रिमेंबर 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन नहीं चाहिए। सो आई विल मार्क इट डी, बट इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर है सी। इस 94 का आंसर है सी। क्यों? यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस, भाई वो डिजिटल सिग्नेचर में प्रिवेसी होती है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखो जो अब लेटेस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं और उसमें डिजिटली साइन होता है ना, उसमें अथॉरिटी का आइडेंटिटी रिवील नहीं होता है, उसमें अथॉरिटी का आइडेंटिटी रिवील नहीं होता है। तो उस बेसिस पे फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, एंड आर आंसर विल बी सी। बस उसमें दिया होता है कि भाई द डॉक्यूमेंट इज डिजिटल साइन बाय द ऑथोराइज्ड अथॉरिटी, कुछ इस टाइप से दिया होता है। तब इसका आंसर मुझे पता था, बट डेलिबरेटली आई मार्क इसका आंसर डी जस्ट टू टेल यू कि देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जहां शायद आप नॉलेज ना लगा पाओ, एंड अगर नॉलेज नहीं पता सो वी विल गो विद आवर बेसिक लॉजिक। एंड लॉजिक क्या कहता है कि भाई इट इज पॉसिबल कि तीनों करेक्ट हो, और तीनों में डी लगा दिया। तो 95 पे आते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरिएबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क और इज और आर अकम्प्लिश्ड बाय वेरिएबल डिवाइस। भाई वेरिएबल डिवाइस है, लाइक घड़ी है, वेरिएबल डिवाइस है, तो क्या क्या हो सकता है? आजकल जो डिजिटल वॉचेस के बारे में कंटेक्स्ट में एग्जांपल ले लो, असिस्टेंट द हार्ड हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, वेरिएबल डिवाइस, मतलब सिर्फ वो वॉच नहीं है, और भी हो सकता है ना, जैसे लाइक वो जो पर्सन लाइक सुन नहीं पाते, जिनकी सुनने की क्षमता नहीं होती, तो उनके लिए भी वेरिएबल डिवाइस होते हैं, उनको भी ताकि वो सुन सके, तो मशीन्स तो उनके लिए भी बनी है। तो इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू जस्ट हैव टू मार्क डी। लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पॉसिबल पर्सन, भाई वॉच में जीपीएस लगा हुआ है तो उससे हो जाएगा। स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्सन, उससे कुछ ना कुछ तो डिविजन इसका भी हो रहा, भाई जैसे इंसोमिया है, जिसे रात को सोने की दिक्कत है, तो देयर आर सर्टेन डिवाइस विच हेल्प द डॉक्टर्स द फिजिशियंस कि भाई वो स्लीप को मॉनिटर करे इंडिविजुअल की इंप्रूवमेंट चेक करने के लिए, तो ये भी वो स्लीप डिवाइस। एंड हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए तो है डिवाइस, तो आवर आंसर विल बी डी, एंड यूपीएससी ने भी इसका आंसर दिया हुआ है डी। सो यस, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, अब कोई अच्छी टेक्नोलॉजी ही होगी, कोई टेक्नोलॉजी है और उसका पोटेंशियल यूज पूछा है, पॉपुलैरिटी के बारे में बात करें, यानी कि कुछ इसका पॉजिटिव यूज है, सो वी विल हैव टू डेवलप अंडरस्टैंड दिस। सो चारों तो नहीं हो सकते क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ, एंड यूपीएससी को पता है कि बच्चे जिनका एप्टीट्यूड है वो इसमें ऑल फॉर मारेंगे, अब ऑल फॉर उन्होंने ऑप्शन दिया ही नहीं, सो वी हैव टू डिड्यूस कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक हो रहा। सो चौथे से, इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस प्रोब, देखो आरएनए इंटरफेरेंस वर्ड को ब्रेक डाउन करो, आरएनए है वो एमआरएनए भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसको इंटरफेयर कर रहे हैं फॉर पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है चलो। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेसिस्टेंट टू वायरल पैथोजेंस, भाई ठीक है, हाँ आरएनए का कोई सीक्वेंस था, एमआरएनए का कोई सीक्वेंस था, उसे इंटरफेयर कर दिया, उसे इंटरफेयर ऐसे किया कि भाई जो वायरल पैथोजेंस हैं उससे उसको अफेक्ट ना हो, उसको रेसिस्टेंस डेवलप हो जाए, जैसे कॉटन को है वॉर्म से जो अपने बॉल वॉर्म उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप हो जाए, तो उस बेसिस पे है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, चलो भाई ये भी हो सकता है। अब देखो फोर्थ तो हमें ठीक लग रहा, अब फोर्थ ठीक है, यानी कि अब थर्ड देखो, फोर्थ और थर्ड साथ में है या नहीं, या तो अब ये तो थर्ड ठीक है भाई, या तो फोर्थ ठीक है। अब मेरे लिए मेरा लॉजिक कहता है कि भाई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से ज़्यादा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या कह रहा है कि हमें पूरा हार्मोन बदलना है, पूरे हार्मोन को रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी सेक्स चेंज की जो थेरेपी होती है, ठीक है, अब कोई लड़का है, मेल है, उसे फीमेल में कन्वर्ट होना है। अब लड़के में क्या टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल में है एस्ट्रोजन है, तो भाई अब उसे एस्ट्रोजन के इंजेक्शन दे देंगे ना, अगर वो अपना सेक्स चेंज करवा रहा है, सेक्स कन्वर्ट करवा रहा है, तो यहाँ पर डीएनए नहीं चेंज हो रहा, आरएनए नहीं चेंज हो रहा, यहाँ पर हार्मोन चेंज हो रहा है। भाई मेल से वो फीमेल बन जाता है इंडिविजुअल, या फीमेल से वो मेल बन जाता है इंडिविजुअल, डीएनए या आरएनए तो नहीं चेंज हो रहा ना, डीएनए आरएनए में तो चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ जो फिजियोलॉजिकल चीजें हैं वो चेंज हो रही हैं। एंड उसके लिए क्या किया जा रहा है कि हार्मोन्स को चेंज किया जाएगा, टेस्टोस्टेरोन की जगह एस्ट्रोजन। तो उस बेसिस पे आई वुड कंसिडर भाई 3 और 4 ऑप्शन में साथ नहीं है, तो 3 इज रॉन्ग फॉर मी, एंड जैसे ही 3 गलत हो रहा तो ऑप्शन हो रहा ए या डी, 1 और 1 कॉमन है, सो 1 इज पॉसिबल, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट साइलेंसिंग थेरेपी, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, हाँ भाई कुछ रोक दिया है वहाँ पर कि अब तक उस कैंसर की ग्रोथ ना हो, तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। बेस्ड ऑन दिस माई आंसर विल बी ए। Recently, scientists observed the merger of giant black holes. Black holes billions of light years away from the Earth. What is the significance of this observation? भाई ब्लैक होल्स ऑब्जर्व हुए हैं, तो अब देख लो, अब जब भी हम ब्लैक होल्स पढ़ते हैं ना, जैसे हिग्स बोसोन पार्टिकल है, पार्टिकल फिजिक्स जनरली हम साइंस एंड टेक में अवॉइड कर देते हैं, भाई कुछ नया सा नाम है, तो यूपीएससी ने ऊपर डाल दिया उसको, यूपीएससी ने ऊपर डाल दिया, तो ऐसे डाल दिया भाई पढ़ेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा।
तो जिसने पार्टिकल फिजिक्स पढ़ा है तो उसको तो पता है कि भाई ये ठीक नहीं है, तो बट जिसने नहीं पढ़ा वो शायद ए मार दे इसके ऊपर, एंड थ्योरी चली हुई है, इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है तो उसका आंसर ए हो रहा, बट नहीं, ऐसे इन सब चीज़ों में नहीं बहना। वी विल रीड ऑल द स्टेटमेंट्स। इट एनेबल द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी भाई ब्लैक होल का और सिंगुलैरिटी का कोई रिलेशन नहीं है। सिंगुलैरिटी का रिलेशन था कब का, जब यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रेवल थ्रू वर्म होल, कोई लॉजिक इसमें लगा नहीं, जस्ट बिकॉज ब्लैक होल वर्म होल एसोसिएशन यूपीएससी बना रहा है, वर्म होल और ब्लैक होल ऐसे डायरेक्ट एसोसिएशन इस कंटेक्स्ट में समझ में नहीं आ रहे। ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड, दिस इज अ फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी, दिस इज फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी, एंड वर डिटेक्टेड, या तो ये ठीक हो रहा या ठीक हो रहा, या तो आंसर ए हो रहा या आंसर बी हो रहा। हिग्स बोसोन का डायरेक्टली कोई एसोसिएशन नहीं है ब्लैक होल से, सो ए इज नॉट द आंसर एंड बी इज द आंसर। थोड़ा गलत हट गया मेरा, जस्ट बिकॉज इतनी आदत नहीं है, एंड आई एम स्पीकिंग फॉर ऑलमोस्ट 1.5 आवर। सो 98 पे आते हैं, जल्दी से निपटाते हैं से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन इन इंडिया। मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस कब होता है, AMR कब होता है, कि भाई जब हम अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम करें। तो ऑप्शन नंबर 4 से आता है मल्टीपल क्रोनिक डिसीज इन सम पीपल, क्रोनिक डिसीज है सम पीपल में। भाई क्रोनिक डिसीज से रेसिस्टेंस हो जाना, ड्रग रेसिस्टेंस होना, तो थोड़ा कंटेक्स्ट में बैठता नहीं है कि क्रोनिक डिसीज है, लंबे टाइम से चलती आ रही है, तो भाई कुछ और कारण भी तो हो सकते हैं उससे, ज़रूरी नहीं ना कि AMR के कारण ही हो। तो आई विल कंसिडर दिस एज ए क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक, ये तो हम पढ़ते हैं भाई, AMR होती ही है कि अनसस्टेनेबल लाइफ स्टॉक देते हैं, वो देते हैं अपन क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं उनको टेटल्स को, तो थर्ड तो ठीक है, थर्ड ठीक है। चलो टेकिंग इनकरेक्ट डोज ऑफ, ये तो भाई मेजर रीजन ही है, तो 2 भी ठीक है, तो 2 और 3 हो रहा, 2 और 3 जिसमें वो आंसर हो रहा। अब बचा 4, भाई अब आपके हाथ में बी पे लेना है बी पे लो, डी पे लेना है डी पे लो, और वो लॉजिक मत कंसिडर करना बी और डी वाला, वो ए और डी और सी और डी के लिए था, वो बी डी के लिए नहीं था, तो थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो उस बेसिस पे 4th भी गलत है, आंसर अपना बी होगा। बट इन केस यू मार्क डी कि भाई क्रोनिक डिसीज के कारण भी रेसिस्टेंस हो सकता है, कि मल्टीपल रेसिस्टेंस हो गया, तो पॉसिबल है। इन केस कि अगर आप वैसा सोचो तो आप लगा सकते हो, बट इसका आंसर भी है, एंड इन केस यू गेट इट रॉन्ग देयर इज नो इशू। भाई ठीक है, हमारे पास 30 क्वेश्चन को रॉन्ग करने का स्कोप है। कैश नाइन क्या है, हर भी सेट, भाई जिसने ये नहीं पढ़ा, भले किसी भी करंट अफेयर में, भाई ये ऐसा टॉपिक है हर करंट अफेयर में कवर होता है, अब जिसने नहीं पढ़ा तो भाई यू हैव टू रेफर दिस। इसका आंसर है ए, मोलिकुलर सीजर, ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस डू नॉट शो द सिम्टम्स फॉर मैनी ईयर्स। भाई पहली बात तो सम की बात कर रहा है, सम में वो 1% भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। दूसरी बात क्या कर रहा है, डू नॉट शो सिम्टम फॉर मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स का मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, 1 2 3, कोई स्पेसिफिक नहीं जा रहा, यूपीएससी स्पेसिफिक नहीं जा रहा, तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी ब्रॉड एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट यूपीएससी ने पूछा है नॉट करेक्ट। Globally, the number of people infected with hepatitis B and C viruses are several times more than those infected by HIV. Several times. कोई नंबर नहीं दिया कि 1 time, 2 time, 3 time, नहीं, several time. Open statement है, it is T. And just one more thing कि hepatitis B is 100 times deadly than HIV. HIV hepatitis B के सामने कुछ नहीं है, तो it is something. यहाँ शायद ऐसे ही कुछ, हाँ, तो C is also correct. अब देखो, hepatitis B, unlike hepatitis C, does not have vaccine. Hepatitis B is transmitted through much like HIV. अब जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके लिए ये क्वेश्चन इजी हो रहा। अब कंपैरिजन आ गया यहाँ पर, हेपेटाइटिस बी जैसे हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन है बट हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं है, यूपीएससी को गलत बनाना है। 3rd और 4th तो काफी मॉडरेट स्टेटमेंट है, काफी ओपन स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, तो वो तो ठीक है। Isn't it easy to make it incorrect? बदल दो यार आपस में, सी की जगह बी कर दिया, बी की जगह सी कर दिया। So with this logic, this question is suspicious. This statement is suspicious. Hepatitis B virus is transmitted much like HIV. कि भाई जैसे HIV स्प्रेड होता है वैसे ही हेपेटाइटिस बी भी स्प्रेड हो सकता है, एंड ठीक है, वायरस जनरली ऐसे ही स्प्रेड होते हैं, एंड हेपेटाइटिस बी स्प्रेड्स लाइक HIV. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज नॉट करेक्ट, सो स्टेटमेंट बी बिकम्स आवर आंसर। एंड जस्ट आई वांट टू आस्क फॉर योर सॉरी कि माई थ्रोट इज नॉट सपोर्टिंग, इसलिए लास्ट से कुछ 10 से 12 क्वेश्चन में आई एम स्टैमरिंग मोर एंड आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई व्यूज क्लियरली, बट आई होप इफ यू आर फॉलोइंग these videos from 2018 का पेपर एंड इनिशियल इंट्रोडक्टरी वीडियो एज वेल, so you must be getting my view कि भाई
ऐसे इसमें लॉजिक लगता है एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई दैट लॉजिक एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू डोंट नीड 100 क्वेश्चंस, यू जस्ट नीड 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 100। उसमें से भी 10 से 15 आप स्किप कर सकते हो। हमें को 60 क्वेश्चन चाहिए, 60 क्वेश्चन में से 30 अपने नॉलेज से आ जाएंगे और 30 क्वेश्चन अपने एप्टीट्यूड से आ जाएंगे। सो वी हैव द 30 क्वेश्चन का स्कोप एज वेल कि हम उन्हें डेवलप कर सकते हैं। सो यस, विथ दिस 2019 इज डन एंड वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि 2020 से स्टार्ट करना है या फिर 2025 में पहले करूँ, सॉरी 2024 को पहले सोल्व करूँ। सो इट इज़ अप टू यू, वट एवर यू विल टेल मी आई विल स्टार्ट एंड द नेक्स्ट वीडियो विल कम ऑन मंडे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करो एंड जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।